Now you please tell me whether it is visible to you, full screen. Any Yes, other sir. participants? Yes, sir, it is visible. Yes, sir. Okay. Now the second question, whether I should discuss the total topic purely in English, or you want the mixed language, or any pure English will do. Sir, I think bilingual will be okay. Okay. So how many participants are there totally? It's around 50. It's good enough to start the discussion? Okay, no problem. So basically, please. 70. तो अभी 50 हुआ तो क्या करें हम? शुरू करें? ठीक ठीक तो आप देखिएगा उसको. So thank you very much for joining this particular program, and thanks to TLC IIT BHU for giving me this opportunity to discuss with the participants regarding the skill development as part of the NEP 2020. Let me introduce myself. I am Professor P.K. Misra, as written on the screen. HEG grade professor in chemical engineering, senior most professor. Been to some administrative positions like ex-vice chancellor to AKTU Lucknow and Jharkhand University of Technology, Ranchi. And I do have around 30 years of teaching experience. As far as entrepreneurship, skill development is concerned, I'm involved in all these activities right from, you can say, around 2000 or even before. So I feel that I can do whatever little justice to the subject. What I've done, I've divided this session into two parts because there are two lectures and I'm supposed to take both one. So one is futuristic skill and how that can be developed into the students in higher educational institutions, meaning that we are going to evolve the education so that our product will be useful for tomorrow's career, the career which will be there in industry, organization, or other places in time to come. The second lecture will be basic one, that is what is skill gap analysis, how we do skill mapping, and how this entrepreneurship programs can be initiated and how gradually you can move toward the path of inculcating skill into your students. तो इस तरह मैंने दो भाग में बांटने की कोशिश की है इस लेक्चर को, और चूंकि there are limitation in virtual media, when I'm sharing full screen, nothing is visible to me. I'm talking to myself. That is a difficult task, but still I like to discuss in a more interesting way. It's not theoretical, with practical examples. We'll try to understand how this skill-based education is somewhat different than the traditional education being practiced in India, at least from British rule till 20th century, you can say. So let us quickly glance over the history of skill-based education. जैसा कि majority of you might be knowing, ancient India में education system was mostly patronized by the society or the kings. It's not that a government system was there, but basically society was playing a lot much role as compared to today's world. आज क्या है, हर काम सरकार करती है और हम केवल शायद अपने परिवार के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. We don't think beyond that. But that was not the case. Even those
persons who are in their 60s and 70s can remember their young days या childhood, जहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि समाज was active in each and every part, चाहे शादी हो, चाहे कोई घर का काम हो, इवन आपका अपना घर बनाना हो, झोपड़ी तैयार करनी हो, तब भी you were calling people and everybody was gladly accepting an invitation and coming and helping you. So it was a societal effect, या societal effort. एक मिनट, हेलो, बताया सर मैं एक लेक्चर में हूँ 7 बजे तक, 7 बजे बाद बात करो, ठीक। So this is what I mentioned here, the beautiful tree. Spelling is wrong. Okay, no problem. Correct it. So the book was written by Dharmpal ji. And what is the basic of this tree? कि अंग्रेजों ने भारतीय शिक्षा परंपरा को इतना ध्यान से पढ़ा कि उसको खत्म कर दिया। यहाँ पर लिखते हैं धर्मपाल जी कि एक पीपल का पेड़ हमारी एक शिक्षा व्यवस्था, such a magnificent, they started exploring it just to understand, and what they had done कि हमारी जड़ों के नीचे से सारी मिट्टी खोद के निकाल दी और हमें सुखा दिया उन्होंने। They killed the education system India had, and you see, using that education system, even we were contributing to the world GDP by 25% till 17th century. चाइना और इंडिया का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कितना ज्यादा था, और जब Britishers left us, what was our contribution? It was 1.8%. So from 25% to 1.8%, that was due to so-called Machiavellian education philosophy जो Britishers ने इंडिया में स्टार्ट की। So let us try to understand उसके पहले क्या था, what was the education system. So Britishers have done a survey of their different presidency, like Madras presidency, Bombay presidency, Calcutta presidency. So what is the education and how different caste, creed and religion is participating into that. So what they found, and that this has been recorded, British Gazetteer Collector's Report, and I have seen that for Bellary district in Karnataka and as well for Varanasi, both I have seen. So what it says, that in only Madras presidency, the number of students in primary education in initial classes were more than whole of the Britain taken together. And there were 3 kind of schools. One was dealing with Sattu Siksha, the Vedic studies. One was Shastra Siksha, the education related to war practices. And the third one was life skill based education system. Those schools which were run by single guru or group of guru of a particular subject, there were students were enrolling to learn how to make textile product, or how to make a leather product, or how to do a cotton or iron product or any other metal processing. So slowly what happened when they decided that all these informal school will be closed and only British government will decide what kind of education is to be given and who will be educated and get the education. And as government has taken over everything, the result was that it could not reach to marginalized and poor people. Only affluent class was beneficiary to that. So what happened to those people who have been supported by the society to learn either Shastra or skill-based education were left behind. And slowly,
majority of them has taken family route, education through their family. Means the elders of their family started teaching the skills which were closer to their heart, or they were expert to their sibling and wards, okay, their family members. हुआ क्या? तब वो परिवार का रूट लेता है और शायद यहीं से कास्ट परंपरा और सॉलिड हो जाती है, यू कैन से. और बनारस के रेफरेंस में जब हमने देखा 18th सेंचुरी का अकाउंट, तो क्या देखा? शास्त्र शिक्षा में ब्राह्मण सेक्स से ज्यादा लोग थे, शस्त्र में 2-4 ऐसे कास्ट थे जिससे लोग थे, लेकिन लाइफ स्किल में मेजॉरिटी ऑफ पीपल वर एनरोल्ड. मोर देन 60 to 65% students were enrolled in life skill based education system. So slowly these schools were forced to die and education has taken family route. And we can see that based on those old educational system, I've already talked about that, India was producing n number of products. And we were trading with number of countries all along the globe. But n number of restrictions were there. एक मिनट और सुनो, अरुण जी आप बताएं. अच्छा, वो प्रदीप से पूछ लीजिए, मैं एक लेक्चर 7 बजे तक. Sorry sir, I will not take the call now. So you see that somewhere we missed the bus. What was the reason? The reason was education, style of education, which was prevailing in the country, which started with Britishers. So if I say current status at higher education level, now we'll briefly talk about this NEP 2020, what it emphasizes. It says higher education now, after NEP 2020, emphasizes the seamless integration of skill development programs. क्या कहते हैं कि हमें स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को बड़ी आसानी से ब्लेंड करना है अपने करिकुलम में. So what is happening? The National Skill Qualification Framework, with the support of the National Skill Development Corporation, these agencies are helping in designing the curricula so that practical skills are incorporated into that. Reason being, when this kind of syllabus will be taught to the students, they will be well equipped to handle the demand of professional world after graduation. तो आप कह सकते हैं कि ये कंटेम्परेरी शिफ्ट है. पहले जो एजुकेशनल प्रोग्राम था, that was more theory based. Now the emphasis is that in addition to theory, you are supposed to add hands-on experience. हम लोग इंजीनियरिंग में कहते हैं कि अब बिना हाथ गंदा किए आप सीख नहीं सकते. नहीं तो what was happening, none of the graduate engineers were doing anything in the industries. Mostly diploma and ITIs were doing technical job, and we were mostly doing maintaining management kind of job. So somewhere overall productivity was suffering. Just see what was the education before this NEP 2020. After independence till 20th century. So it can be said that up to 20th century, India was mostly adhering to Macaulay's principle of education. And what was the preference of those education system? That producing clerk. It doesn't mean necessarily that skill development should be the part of that.
And until and unless there is skill into a certain person, he cannot be a proficient person. And that is why only due to personal effort or effort as a group, something related to skill development was there. Otherwise, mostly it was plain theory, mugging up and passing the examination. So let me talk about Professor Kalam briefly, whom I suppose was first to point out that there is something serious wrong into the education system of India. And there is a letter by Kalam Sahab to his fellow Indian. और आई होप कि आप लोगों ने इसे पढ़ा होगा, जहां कलाम साहब कहते हैं कि मुझे कैनेडी की वो बात 1960s की याद आती है जब he was addressing to his fellow American. What he said, that he was addressing to his fellow American, that if you want to make your country proud, if you want to make your country as developed as that, mighty Europeans are, you do whatever Europeans are doing for their own country, Britishers, French, Spanish, etc. And talking about his own country, Indians, Kalam Sahab says that we Indians are very negative. Our media is very negative. They only talk about the rape, murder, theft, dacoity, only negative news. Nobody is interested in positive news. What kind of scientific innovation India has done? What step has been taken to improve upon the entrepreneurial ecosystem in India? और कलाम साहब वहां कहते हैं कि हम लोगों को पश्चिम बड़ा प्यारा लगता है. Always we look toward US and America. Sorry, Europe. Then that's why he reminds the word of Kennedy and says, let me do what Kennedy has done for US. कि अगर भारतीय अमेरिका और यूरोप को इतना अच्छा मानते हैं तो आप भी अमेरिकन और यूरोपियन की तरह अपने देश के लिए मेहनत करिए. Do hard work for your own country, India. Do number of innovations. Don't do copycat kind of thing, Jugaad technology. And he dreamt that by 2020, India will be one of the most developed nations. And today, sitting in 2024, आज 2024 में हम लोग बैठे हैं, ये तो हम नहीं कह सकते कि हम बड़े विकसित देश हो गए, लेकिन हम अभी तो ये कह सकते हैं कि उस रास्ते पर चल पड़े. Now, let me refer one more person known as Professor R.A. Maselkar. So, some of you might be knowing his name. He was a scientific advisor to Prime Minister Atal Bihari Vajpayee, and he was also the Director General of CSIR, Council for Scientific and Industrial Research. और आज भी देश की जितनी बड़ी कंपनीज हैं उनके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में मासेलकर साहब हैं, और मेरी तरह वो भी एक केमिकल इंजीनियर है, या मैं उनकी तरह एक केमिकल इंजीनियर. सो मासेलकर साहब ने 21वीं शताब्दी की पहले साइंस कांग्रेस में जो पुणे में हुई थी, वहां उन्होंने दिया था एक पंचशील ऑफ न्यू मिलेनियम. He has given a philosophy kind of thing, that is Panchshila of New Millennium. And what he said, that if you want to make India one of the most developed nations, as dreamt by our visionary ex-president Dr. Kalam, we have to follow or we have to adhere Panchshila of New Millennium. वहां वो कहते हैं कि पंचशील तो हमने बहुत पढ़ा, जातक कथाओं में पंचशील पढ़ा, महात्मा बुद्ध ने पंचशील दिया, महावीर जैन ने पंचशील दिया, नेहरू और चाउ एंड लाई के बीच में इंडो चाइना रिलेशनशिप अच्छा रहे इसके लिए भी पंचशील हुआ. सो पंचशील इज नथिंग बट 5 सेट ऑफ कंडक्ट.
So this is the punch seal to make India one of the most developed nation. And the first point it says student-centric education. एजुकेशन कैसा होना चाहिए? विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए. मतलब विद्यार्थी को जिस तरह की एजुकेशन की जरूरत हो उस तरह की एजुकेशन हम दें. विद्यार्थी के पर्सनालिटी को ग्रूम करने के लिए जो आवश्यक है वो हम करें. स्टूडेंट को क्लासरूम इंटरटेनिंग लगे, एडुकेटिव लगे, टीचिंग लर्निंग का एम्बियंस बेहतर हो, वो हमें करना होगा. हमें इंट्रोस्पेक्ट करना होगा. व्हाई स्टूडेंट्स आर गोइंग टू sports arena, going to musical program, theaters, but they are not enthusiastically coming to the classrooms. तो स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन क्या कहता है? पहली बात, हमें एजुकेशन की पॉलिसी में ओवरऑल चेंज करना होगा, और वो हो गया. एनईपी 2020 आ गया. लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू वो सारी चीजें डालने की कोशिश की, लेकिन एक बार में सब होता नहीं है. जब सिस्टम शुरू होगा, उसको ब्लेंड करेंगे, काम करना शुरू करेगा, देन आफ्टर एक्सपीरियंस वी कैन से कि हाँ ये हटाना है, ये जोड़ना है, या ये मॉडिफाई करना है. सबसे बुरी स्थिति थी जब छोटे बच्चों को, सोचिए क्लास, नॉट क्लास, 3 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे, 3 year old, 4 year old, their biological clock was not permitting. उनकी आंखें नहीं खुलती हैं और उनकी मम्मी लोग उनको नहला धुला के, पेरेंट्स जबरदस्ती ऑटो रिक्शा में, स्कूल वैन में डाल देते हैं, उनके वजन के बराबर बैग लेके. तो कहीं ना कहीं सिस्टम गड़बड़ था, रॉटन. हाउ टू इंप्रूव अपॉन? वी स्टार्टेड डूइंग दैट. लेट अस होप फॉर द बेस्ट. तो जब स्टूडेंट, जो कि कंट्री के करीब 50 से 60% यूथ है, until unless you polish them well, groom their personality well, they will not be useful for the country. Second is woman centered family. says कि 140 करोड़ का देश है, तो 70 करोड़ अगर मेल है तो 70 करोड़ फीमेल होंगी. And after independence or before independence, even up to 1980s, I'm afraid to say that ladies were not given proper opportunity to educate, to participate in the nation building. And that is why they were left behind, and the country was also left behind in the race of developing countries. और हमने देखा है कि घरों में जो मैनेजमेंट होता है, that is mostly done by the ladies, and it has been proved that they are better manager than the male. So let us give them proper opportunity to excel. भाई किरण सा मजमूदार एक अच्छी लेडी है, आप देख सकते हैं, उसने एग्जाम्पल दिया, कैसे प्रूव किया कि कितना बड़ा काम मैं कर सकती हूँ. तो अगर देश एक रथ है और रथ के 2 पहिए हैं, एक पहिया मेल, मजबूत, वेल ऑयल्ड एंड ग्रीस्ड, सदियों से प्रेफरेंस मिलता रहा. दूसरा फीमेल, मार्जिनलाइज्ड, उपेक्षित, टूटा फूटा पहिया. लेट अस अज्यूम, and there is a very strong horse, कोई भी हो, मैं नाम नहीं लूंगा, देश को जो ले जा रहा हो आगे पीछे जो भी. तो आप कहोगे कि डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट होता इसलिए नहीं है क्योंकि एक पहिया टूटा है तो रथ सीधे नहीं चलेगा, वहीं गोल गोल घूमेगा. तो हमें दोनों पहियों को बराबर बल देना होगा. बोथ शुड बी द पार्टी ऑफ डेवलपमेंट. Third, he said knowledge-centered society. He said this is information era. From a single click on the Google, you can find a number of information. But processing that information and converting it to the knowledge is very important thing. And who will be doing that? भैया हम टीचर और साइंटिस्ट तो करेंगे. Fundamental science, fundamental social science, fundamental language, everything will be updated, improved upon through proper research and innovation. तो सोसाइटी को क्या करना होगा?
प्रॉपर रिकॉग्निशन देनी होगी जो लोग नॉलेज क्रिएट करते हैं। अभी शायद टीचर्स को उनका ड्यू नहीं मिलता, या टीचर्स इतनी मेहनत नहीं करते कि उनको लोग ड्यू दें। कुछ भी है, मैं इस पे कोई डिसीजन नहीं देने जा रहा। फोर्थ वन इज विकास मानव पर रखो। नाउ वी आर सिटिंग इन द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एरा। वी आर टॉकिंग अबाउट AI, ऑटोमेशन, ML, IoT, and still there is importance to human centric development. जब तक हर आदमी इस विकास के पथ पर अनुगामी नहीं होगा, हम विकसित नहीं हो सकते। So proper training, maybe through community college, maybe through vocational college, maybe through pure theoretical college, maybe through this blended theory and skill based education, सबको ट्रेन करना होगा और सबको कोई ना कोई वोकेशन जॉब देनी होगी। Otherwise, what is happening that those guys who are educated, are skilled, if they are not getting anything, their contribution to the society will mostly be negative. Now that is why we need opportunity in every area: agriculture, cultivation, processing, marketing, till eco warriors, water warriors, till ICT experts. And finally he says country should be innovation centered. वहां लिखते हैं कि एक दिन मैं टाइम्स ऑफ इंडिया खोलूं तो मुझे दिखना चाहिए this particular professor of this particular university or IIT has bagged Nobel for physics, Nobel for chemistry. Why we are not getting that? So let us explore, let us introspect what is wrong and how to correct that. So the crux was with NEP 2020 that there should be collaboration between training institution and the institution where their product is going to be done. आप लोगों से अनुरोध है कि जिसका माइक म्यूटेड नहीं है म्यूट कर लें। जितना मैं लेक्चर में हूँ बेटा 4 से 7, ओ एक बेटे का लड़का मिल गया है, ठीक है, फिर बाकी बाद में बात करते हैं। ठीक है, आप लोग में से किसी का somebody is there? TLC? भैया किसी का अनम्यूट है, लोग लड़ाई उड़ाई कर रहे हैं। ठीक है, so now the principle is of education that we need industry academia collaboration. In higher education, a strong collaboration between academia and industry is ensuring that graduates are job ready. इन्होंने कह दिया हो रहा है। नहीं, अब देखो सेटिंग के देखिए उधर कैसा सेटिंग करता है। So let me again request that Pooja Kataria, please mute your mic. एक बात बताओ, मैं अपनी कुर्सी में SPO में था ना, मैं पिछले 10 साल क्या है यार? So need was felt that training institute or academic institutes should have a closer linkage with the industry, with the organization, with the society for which they are creating the product. अगर इंजीनियरिंग कॉलेज है तो इंडस्ट्री के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं, मेडिकल कॉलेज है तो हॉस्पिटल के लिए। एंड यू टेक द एग्जांपल, मेडिकल कॉलेजेस में हॉस्पिटल क्यों होता है? बिकॉज दे कैन
have first-hand experience whatever they are studying. और इसीलिए वहां पर ये कभी क्राइसिस नहीं रही कि जो पढ़ रहा है उसको नहीं आता, with the exceptions कि कुछ लोग सीखना ही नहीं चाहते. But in majority of other academic institutions, including the technology, जिनको जाके इंडस्ट्री में तुरंत वही काम करना है, वो केवल किताब पढ़ के जा रहे थे, थोड़े से एक्सपेरिमेंट कर ले रहे थे. तो ये नीड बहुत पहले फील होना शुरू हुई थी 90s में. और जब हम लोगों ने पर्सनल एफर्ट से द इंस्टीट्यूशन एंड द प्रोफेसर्स हैव स्टार्टेड collaborating with the industry of their region. होता क्या है कि जब हम अपने प्रोग्राम में इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप ये सब डालते हैं तो बच्चों को वो एक्सपीरियंस होता है. And this hands-on experience basically enables students to apply their theoretical knowledge in real world scenario. वो जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं उनको समझ में आता है और उनकी प्रैक्टिकल स्किल डेवलप होती है, जिससे जब जॉब मार्केट में हो जाते हैं तो उस कंपटीशन में सफल होते हैं. So this kind of collaboration not only enhances the students' learning experience, but also align academic curricula with the current needs of industries, fostering a smoother transition from education to employment. So let us quickly go through the role of NSDC, National Skill Development Corporation. This is the crucial entity of skill development in India, and what that is doing, acting as a catalyst. It fosters a collaboration between industries and training organization, and the focus is to identify a key sector for skill enhancement. कहाँ पर किस सेक्टर में किस स्किल की जरूरत है. तो they set occupational standards, promote partnership. So you can say that NSDC is playing a pivotal role, and what is very much required, that is narrowing the gap between industry demand and the skill set of the workforce. इंडस्ट्री में जिस तरह की स्किल्स की जरूरत है उस तरह से हमारे ग्रेजुएट तैयार हो, ये काम है एनएसडीसी का. और व्हाट विल हैपन, दिस विल एनहांस द एम्प्लॉयबिलिटी, and with employability will be contributing towards the economic growth of the country, and more skilled and competitive workforce will be trained. हम लोगों को डेटाबेसेस भी चाहिए. Why? Because whatever kind of training program we are doing, whatever kind of mentoring program we are organizing, उसकी monitoring कैसे होगी? How to monitor that? How to evaluate the effectiveness of those initiatives? तो databases होंगे कि बंदा आया, उसके अंदर ये skill set थे, उसका ये education था, he has done a 15 days course, has been trained in this particular skill. Finally, skill में क्या change हुआ, and what was the result? Whether he has started his own business, whether he has got the job, what is his current status? तो इस तरह की जब डेटाबेसेस होंगे जहां ट्रेनिंग की डिटेल, सर्टिफिकेशन, एम्प्लॉयमेंट आउटकम, ये सब हम लिख के रखेंगे, डॉक्यूमेंट करके रखेंगे, तो इससे हमें एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग करने में इजी होगा. पॉलिसी मेकर को ताकत मिलेगी कि वो प्रोग्राम को फिर से एक्सेस करें, उसका जजमेंट करें और अपनी स्ट्रेटजीज को अकॉर्डिंगली बदलें. तो स्किल डेवलपमेंट एफर्ट्स की जो एडाप्टेबिलिटी के लिए नेशनल डेटाबेस बहुत ही क्रिटिकल रोल करता है, और वो जो इवॉल्विंग नीड है वर्कफोर्स की उसको सप्लीमेंट करने की कोशिश करता है. इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इज वेरी मच नीडेड, because one country, until unless is sharing its best practices with other country, you cannot create a global understanding. पूरी दुनिया में स्किल ट्रेंड क्या है, कैसे चेंज हो रही है, वो तभी पता चलता है जब कंट्रीज आपस में कोलैबोरेट करती हैं, डायलॉग करती हैं. And through these exchanges, countries can adopt successful strategies, innovative models, effective policies to improve the quality of their skill development initiative. और उससे क्या होगा,
will create more interconnected and adaptable global workforce, which can address the common challenge. An individual will be prepared in such a way that they will be successful in this competitive world throughout the globe. So there are a number of international oriented courses. ये सब कोलैबोरेशन से तय होता है कि इनको ये पढ़ना है, ये ट्रेनिंग करना है, because our global workforce has to be exposed to the diverse perspective and cultures of the different corners. तो एक देश की बाउंड्री से अलग ग्लोबल इश्यूज पे उनको इंसाइट दी जाती है. इंटरनेशनल प्रैक्टिस क्या है, क्या इंटर कल्चरल कॉम्पिटेंसीज को कैसे लर्न किया जाता है, व्हाट विल बी द इंटरनेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स, ऑल शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू दैट. तो आज के इस ग्लोबल विलेज के दौर में हमारे स्टूडेंट्स को अगर ग्लोबली एक्सेप्टेड स्किल्स और कम्युनिकेशंस मिलता है तो वो प्रोफेशनल लैंडस्केप में अपने को एक्सेल करते हैं. इसी लाइन में we will be talking about the entrepreneurial training, why it is important. So entrepreneurial training cultivates innovation and risk taking. ये दो बड़ी खास चीजें हैं. बार बार innovation, thinking out of box, putting right thing at right place, doing marginal improvement into certain products so that its market is increasing, its price is increasing. You know, you are making a product that is 99.5% pure, it will be very cheap until unless it becomes 99.99999%. Suddenly the cost will be 10 times, 100 times. तो आज के बिजनेस चैलेंज के जमाने में अपने को अगर प्रूफ करना है तो आपको इनोवेटिव होना होगा. So innovation and entrepreneurship goes beyond the traditional education. हमें एक ऐसा माइंडसेट चाहिए जो क्रिएटिव हो, एडाप्टेबल हो और वही एंटरप्राइजिंग भी हो. तो आपको क्या होगा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए, रियल वर्ल्ड सिनारियो का. तो आपको उस तरह की ट्रेनिंग क्रिएट करनी होगी, उन लोगों के द्वारा करनी होगी जो इस रास्ते पर चल चुके हैं. एक टीचर एंटरप्रेन्योरशिप कैसे पढ़ाएगा? उसके लिए स्टार्टअप के मेंटर और एंटरप्रेन्योर्स चाहिए जिन्होंने वो यात्रा की है. We have to have that kind of skill. Those students should have the skills so that they can identify the opportunities, move through the uncertainties, and ultimately succeed in their business landscape. So जरा देखिए वो कौन सी characteristics है that is required to become a good entrepreneur, a successful entrepreneur. By suppose in an institution we are given responsibility to initiate a entrepreneurship development cell or technology business incubator. So we have to shortlist the students. Students will come with their ideas and we have to find out whether they will be successful or not. तो आदमी तो वही सफल होगा जिसके 5 चीजें हैं: मोटिवेशन, इनिशिएशन, रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन, रिस्क टेकिंग एंड इनोवेशन. देखिए फिर इनोवेशन, हर चौथी स्लाइड में इनोवेशन. मोटिवेशन इज नथिंग बट नीड, ड्राइव एंड गोल. दैट इज मोटिवेशनल साइकिल. There are two kinds of motivation, intrinsic and extrinsic. Intrinsic motivation means I have introspected myself within, I've looked within myself. I do understand that I can do this job and I will keep myself motivating. Extrinsic means you need additional somebody else to motivate you. Or what is need? स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, असंतुलन की अवस्था को आवश्यकता कहते हैं. एक क्लियर डेफिनेशन है. तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको असंतुलित रहना है. द डिग्री विल डिपेंड अपॉन योर ओन पर्सनैलिटी.
कितना असंतुलित रहें जिससे आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए मामला, लेकिन संतुष्ट भी नहीं होना है। संतुष्ट हो गए तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। चना चबेना गंग जल जो पुरवे करतार, काशी कबहू न छोड़िए विश्वनाथ दरबार। That is true for person like me or even senior to me, but the person who is purely young, budding young, he should be unstable. He should try to set a new goal every day. Whenever he is reaching closer to the goal, he will again make another goal. To need, I'm not talking about the basic need, roti, kapda or makan. No need to talk about that. Advanced need, psychological need, sociological need of approval, need of power, need of achievement, creativity need, or autonomy need, and self-actualization need. Let me talk about only three. Need of approval. Adolescence is the age when we are having very high degree of need of approval. Don't have self-confidence. हर चीज के लिए अपने बड़ों से पूछना, लेकिन कितनी बार पूछोगे? एक दो बार पूछ के आपको सीख जाना चाहिए क्या सही है और क्या गलत। So as you grow, please decrease the degree of need of approval. Then you will be confident. Next one is need of power. By hook or by crook I will win. फुटबॉल खेलने जाएंगे, अपोनेंट की टांग तोड़ देंगे। Need of power को कम करना होगा। The degree of need of power has to be minimized. How much? I will not exploit anybody. I will not threaten anybody. But if someone comes, tries to destabilize me or threaten me, I'll put my foot forward और उस आदमी से कहूंगा, भाई साहब आपकी सीमा वहीं खत्म हो जाती है जहां से मेरा नाक शुरू होता है। So minimize but don't eliminate. Next one, need of achievement. That is very important. I'll not go beyond that. Need of achievement क्या कहता है? मुझे अपनी शिक्षा पता है, मुझे अपने पर्सनालिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स पता है। Based upon that, I have created a goal for myself. मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता हूँ। जब गोल के पास पहुंचता हूँ तो उसे और बढ़ा देता हूँ। मैं अगर ऊंची कूद का खिलाड़ी हूँ, मैंने 5 फुट कूद लिया, अगले दिन 5 फीट 1 इंच पे बार रखूंगा, उसको कूद लूंगा तो 5 फीट 2 इंच पे रखूंगा। The guys who slowly raise their aspirations, slowly raise their bar, become a successful person and will be valuable to the society. हमें ऐसे बच्चों की ट्रेनिंग करनी होगी, उनके नीड ऑफ अचीवमेंट को बढ़ाना होगा। नेक्स्ट वन इज इनिशिएशन। कुछ भी काम हम सोच लें, उसे शुरू करना होता है, तब होता है। मुंगेरी लाल की तरह हसीन सपने देख के शुरू नहीं होता। If you need, pearl from sea, you have to jump into that. समुंदर से मोती निकालना है तो समुंदर में कूदना पड़ेगा। समुंदर के किनारे खड़े होके आप मोती को आवाज लगाएंगे कि मोती आ जा, मोती तो नहीं आएगा, कुत्ता आ सकता है कोई मोती नाम का। थर्ड वन है रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी काम करना होगा, रिसोर्स चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप में तो पक्का चाहिए, फाइनेंस चाहिए, टीम चाहिए, स्पेस चाहिए। तो अगर आपके अंदर एबिलिटी है, आप कोई प्रोग्राम फटाफट कर सकते हैं, आप लोगों से इंटरैक्ट कर सकते हैं, उनसे पैसे इकट्ठा कर सकते हैं, तब तो आप एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, क्राउड फंडिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट वन द रिस्क टेकिंग। आप जब भी किसी नए रास्ते पर चलते हैं, क्या होता है? क्योंकि वो रास्ता परिचित नहीं होता है तो कुछ खतरे तो होंगे। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज अ न्यू एरा। भाई उनके लिए जिनके परिवार में बिजनेस नहीं है, उनके लिए नई यात्रा है। लेकिन अगर आपने अपनी तैयारी बढ़िया की है, मंजिल आपको पता है, तो यात्रा में परेशानियां आती हैं लेकिन आप सफल होते हो। फेल वो होते हैं जिन्होंने प्रॉपर तैयारी नहीं की।
रेगिस्तान में जाना है, पानी है ही नहीं उनके पास। फाइनली इज इनोवेशन अगेन। कहा? प्रोडक्ट में इनोवेशन, मार्केट में इनोवेशन, प्रोडक्ट के प्रोसेस में इनोवेशन, प्राइसिंग में इनोवेशन, ऑर्गेनाइजेशन में इनोवेशन। सो इनोवेशन इज अ की एंड बज़वर्ड। आप जब भी स्किल की बात करोगे, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करोगे, दैट विल बी देयर। सो लेट अस क्विकली सी व्हाई एंटरप्रेन्योरशिप वी आर टॉकिंग अबाउट। और पहले क्या होता था? पढ़ने का मतलब नौकरी, चाहे गवर्नमेंट में चाहे प्राइवेट में। टीचर्स को मैं नौकरी नहीं मानता हूं, नौकरी कर रहे हैं, लेकिन वो जब तक चाहे पढ़ा सकते हैं, रिटायर होके फिर पढ़ा दें। इज गुड एज एंटरप्रेन्योरशिप। तो जॉब एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा? आपके सर पे एक बॉस होगा, बिना बात का हल्ला करेगा वो। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में क्या है? केवल अपनी प्रॉफिट कैसे हो इसके बारे में सोचना है। सो यू सी व्हाट इज द डिफरेंस इन एजुकेशनल सिस्टम ऑफ बोथ। जॉब एम्प्लॉयमेंट मतलब आपने स्कूल में पढ़ाई की, हायर एजुकेशन किया, एक कंपनी में या सरकार में नौकरी की और रिटायर हो गए। 60 साल में, 58 साल में, 65 साल में, जो भी रिटायरमेंट एज है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या कहता है? आप स्कूलिंग करोगे, हायर एजुकेशन करोगे, और अब एनईपी कहता है कि हर इंस्टीट्यूशन में बिजनेस इंक्यूबेटर होना चाहिए। स्कूल में अटल लैब होगा, टिंकरिंग लैब होगा, डिजाइन थिंकिंग लेबोरेटरी होगी। तो इनके सहयोग से आप प्रोडक्ट बनाएंगे, उसकी वैलिडिटी चेक करेंगे, उसकी मार्केटिंग चेक करेंगे, और आपको लगता है 4 साल जब आप पढ़ रहे हो उस दौरान आपने प्रोडक्ट तैयार कर लिया, कंपनी तैयार कर ली, डिग्री के साथ कंपनी लेके भी जाइए, या आप कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कर लें, कुछ ट्रेनिंग कर लें, फिर अपनी कंपनी शुरू करें। या चौथा तरीका हो सकता है कि स्कूल, हायर एजुकेशन और कुछ दिन नौकरी करके आए और उससे सीख के आए और फिर अपनी कंपनी शुरू की। जो भी रास्ता हो, you will start your venture, you will grow your venture, you will make another new venture, and you will never retire. तो अब देखिए कि 21वीं शताब्दी के लिए इस ग्लोबल सिनारियो में what are the basic main skills? If I talk about the soft skill, there are 4 C's: critical thinking, creativity, communication and collaboration. कहने का मतलब एकला चलो लेका जमाना गया। आप जब तक कोलैबोरेट नहीं करोगे, जब तक एक अच्छी टीम नहीं होगी, जब तक एक कम्युनिकेशन बिटवीन टीम मेंबर्स नहीं होगा, आप लोग क्रिएटिव नहीं होंगे, अगर आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड नहीं है, तो आप एक वर्सटाइल वर्कफोर्स के हिस्से नहीं बन सकते। Sorry, just a moment. Okay, I forgot the switch. What is charging? Okay, so the 4 C's are critical. क्या होता है? क्रिटिकल थिंकिंग से आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड आता है, क्रिएटिविटी से इनोवेशन होती है, और जब इफेक्टिव कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन आप करते हैं, तो आप किस नॉट डिसीजन मेकिंग इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, possessing these skills is paramount for both personal and professional advancement.
अगर आपको आगे जाना है तो आपको ये चारों को अपनी पर्सनालिटी में चाहिए, तो आपके स्टूडेंट्स में तो पक्का चाहिए, क्योंकि उनकी पूरी जिंदगी पड़ी है। और बट एंड डेटा मैनेजमेंट इज की टू 21st सेंचुरी। तो पूछते कौन कौन सी स्किल दे स्टूडेंट को, तो मैंने कहा ये दोनों इररिस्पेक्टिव ऑफ ब्रांच, हमें दुनिया सुंदर चाहिए, क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट वेरी बैड। सो आपको पानी चाहिए, हवा चाहिए, जंगल चाहिए, खेत चाहिए। तो क्लीन इन्वायरमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन सिटीज विद वर्ल्ड क्लास इंफ्रा, दैट इज नीडेड। कौन करेगा? द पर्सन हु इज हैविंग दिस एबिलिटी, हु हैज बीन ट्रेन्ड इनटू दैट। एंड नेक्स्ट, डेटा हर जगह, किसी भी फील्ड में। अब आपको बेसिक कंप्यूटर से काम नहीं चलेगा, कुछ तो सीखना होगा। AI, ML, IoT, इनका एप्लीकेशन ही सीखिए, कुछ नहीं आता। हम एप्लीकेशन सीख लेंगे, लेकिन यंग लोगों को तो इसमें कैरियर बनाना होगा। तो चाहे लैंग्वेज पढ़ रहा हो, चाहे हिस्ट्री पढ़ रहा हो, चाहे कॉमर्स पढ़ रहा हो, उसके कॉलेज में AI का एक टीचर होना चाहिए। ये देखना होगा गवर्नमेंट कैसे करेगी, कैसे उसे पता चले इनका क्या इम्पैक्ट है सोसाइटी में, कैसे डेटा का महत्व पड़े, हाउ टू प्रोसेस द डेटा, हाउ टू इन्फर द रिजल्ट। So, because this is the era of digital transformation, I am talking about the Industry 4. So there are a number of opportunities in IT, cyber security and data sciences. Second one is the green skills. ये एनर्जी जो कि वास्तव में कन्वेंशनल एनर्जी थी, युगों युगों से बायोमास एनर्जी, सोलर एनर्जी यूज होता था, विंड एनर्जी, उसको हमने रिन्यूएबल कह दिया। ये पॉलिसी मेकर का एक मजाक था। आना चाहिए, जहर फ्री चाहिए। So we need sustainable and organic agriculture, and then conservation of ecosystem, conservation of ponds, rivers, lakes, wells. कहाँ पहुंच गए हम, देखिए ध्यान से। एंड नेक्स्ट वन इज सॉफ्ट स्किल। ये जो तीनों मैंने कहा है, ये तीनों तो बहुत ही इसेंशियल है, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो। तो एक सॉफ्ट स्किल चढ़ाने वाला टीचर चाहिए, काउंसलर टाइप, एक डिजिटल स्किल का, कंप्यूटर का, और एक ग्रीन स्किल का जो इन्वायरमेंटल साइंस बैकग्राउंड का हो। ये हर कॉलेज में चाहिए, जो हर टीम वर्क एंड अडॉप्टेबिलिटी, ऑल दिस एनहांसेस द एम्प्लॉयबिलिटी एंड कैरियर एडवांसमेंट। मैंने लिखा है, ग्रीन स्किल की बात हुई तो मैंने लिखा है, जीरो डिस्चार्ज नाउ, डोंट लेट योर रिवर डाई। होम स्किल डिस्चार्ज, ऑर्गेनाइजेशन, होटल, मॉल्स, एक बूंद भी पानी निकला तो नाले में नाले से छूट, हमें ऐसे पुनः टैप में सप्लाई किया जाए, जीरो वेस्टेज, फ्रॉम गार्बेज टू गार्डन। और आप देखिए माइनर इनोवेशन, टॉयलेट सीट के ऊपर बना दिया हमने बेसिन, हाथ धोया, वो पानी फ्लश के लिए काम आएगा। इफेक्टिव यूज ऑफ वाटर। हमें नेचर से सीखना होगा।
गाय को देखिए, मैंने यहाँ पर दिखाया है कि ये बायोडाइजेस्टर है, 3 चेम्बर बायोडाइजेस्टर। हम भी हैं, आप भी हैं। तो इसको घास खिलाई जाती है, चारा खिलाया जाता है, तो उसने मुंह में दांत से उसको च्यू करती है, श्रेडिंग। फिर उसके लार से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में हाइड्रोलिसिस होता है, इट गोज टू 3 चेम्बर डाइजेस्टर, जहाँ डाइजेशन होता है। फाइनली मुंह से गैस और पीछे से फर्टिलाइजर, काउडंग, और वो दूध भी देती है। तो इनको अगर हम यूज करें, तो पहला एक प्लांट हम लोगों ने बनाया था 2002 में। आई एम गिविंग माई पर्सनल एग्जाम्पल। वन ऑफ माई स्टूडेंट गौरव केडिया, who is currently the chairman बायोगैस एसोसिएशन इंडिया, वो बीटेक में था मेरे साथ। मेरे लैब में ये पहला प्रोडक्ट हुआ। जब लोग बात नहीं करते थे, तब कैसे फूड वेस्ट से गैस बनाया जाए। तो ये प्लांट बना, कंटेनराइज वेसल। इसे बायोबॉक्स नामक कंपनी ने ट्रेड किया। कई मेट्रो स्टेशन पे लगा है, दिल्ली में और हैदराबाद में, कई जगह। तो कैंटीन के वेस्ट से हम लोग गैस बनाते हैं और खाद बनाते हैं। गैस से कैंटीन में खाना बनता है और खाद खेतों में भेजा जाता है। ये पहला एग्जाम्पल था। उसी तरह अगर आप चाहें मतलब आपके बच्चे चाहें, तो ऐसा बिजनेस सोच सकते हैं। यहाँ फूड वेस्ट और सीवेज स्लज, हर शहर में अब STP है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। उसका जो सॉलिड वेस्ट होता है, उसमें भी मैन्योर वैल्यू है। उसको डाइजेस्ट करें तो डाइजेस्ट मतलब मैन्योर, और बायोगैस मिलेगा। बायोगैस में प्रॉब्लम क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन सल्फाइड करोड करता है, कार्बन डाइऑक्साइड उसको कॉम्प्रेस नहीं होने देता। इन दोनों को निकाल दे, इनरिचमेंट कर दिया, फिर उसको हाई प्रेशर पे कॉम्प्रेस करके बायो CNG के रूप में हम यूज कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स ले रहे हैं। ये दूसरा बायो एनर्जी में हम लोग का एफर्ट था, जब राष्ट्रपति भवन में घोड़े की लीद से गैस बनाई गई और वहां की कैंटीन में जो उनके स्टेबल में घोड़े थे, उस वेस्ट से ये बनाया गया और उनको सप्लाई किया गया। एक हमारे स्टूडेंट थे ज्ञानेंद्र पांडे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आपको पता होगा कि द कंट्री इज प्रोड्यूसिंग अराउंड 40 मिलियन मैट्रिक टन ऑफ राइस हस्क। धान की भूसी हमारे पास 40 मिलियन मैट्रिक टन होती है, जिससे 1,45,000 गांव को बिजली दी जा सकती है। लेकिन पहले किसान मजबूर होता था, क्योंकि गाय भी इसे नहीं खाती थी, जानवर भी नहीं खाता था, ये फेंक दिया जाता था। लेकिन जब ज्ञानेंद्र ने इससे बिजली बनाना शुरू किया, धान मिल में आया, मिल से धान की भूसी मिली, धान की भूसी हस पावर सिस्टम में गई, वहां से बिजली बना, वो लोगों के घर में बिजली गया, इरिगेशन के लिए खेत में गया, सीमेंट में मिलाया गया, कार्बन क्रेडिट अर्न किया गया। यहीं पर हम नहीं रुके। इसके बाद हमारे 3 और स्टूडेंट, अभिषेक पोद्दार, तन्मय पांड्या, निखार जैन, उन्होंने उस धान की भूसी की राख, उसको प्राइमरी प्रोडक्ट माना और उससे प्रेसिपिटेटेड सिलिका बनाया। अभी सिलिका सैंड से प्रेसिपिटेटेड सिलिका बनता है, जिससे विंडो ग्लास बनता है। तो आप सोचिए, बेनाइन टेक्निक से ये काम किया गया, और इसके लिए बच्चों को DST लॉकहीड मार्टिन अवार्ड 2015 का मिला। So you see, this kind of skill training and entrepreneurship training, this kind of creativity certainly helps nation to progress. This is civil engineering student Naveen Kumar. इन्होंने बीटेक करने के बाद 1 साल नौकरी की। देखा यार, वाटर इंडस्ट्री में बहुत काम है, लेकिन आरओ में देयर इज अ लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ वाटर। He came back to institution again for a year, stayed back with me, और फिर हम लोगों ने आरओ और पीआरओ को कंबाइन किया
रिवर्स ऑस्मोसिस, प्रेशर रिटार्डेड ऑस्मोसिस। और जहां पहले 600 लीटर से 150 लीटर पानी निकलता था, 450 वेस्ट होता था, और 600 पानी पंप करने के लिए ऊर्जा ज्यादा लगती थी, इस टेक्नोलॉजी से अब 250 लीटर से 150 लीटर होने लगा। मतलब 400 लीटर ऊर्जा पंप करने की बची और पानी का वेस्टेज भी 400 लीटर बचा। सो यू सी, इनोवेशन सस्टेन्स द लाइफ। एक और एग्जाम्पल, मानस नंद, डिटर्जेंट बनाया इन्होंने रीठा से। पहले लोग यूज करते थे, लेकिन अब नई टेक्नोलॉजी से उसे करना, ये इनोवेशन कहा जाएगा। सोलर एनर्जी की बहुत आजकल थ्रस्ट है और होना भी चाहिए, ग्रीन एनर्जी। सो सोलर स्टेल्स, सोलर रिफ्लेक्टर्स, ये सब बच्चों को तो सिखाना ही चाहिए। और मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि शिरडी के टेंपल में, तिरुपति के टेंपल में इतने लोगों का खाना बनता है, वो सोलर थर्मल किचन में बनता है। लद्दाख में मिलिट्री कैंटीन में भी अब सोलर थर्मल किचन से बनता है। आज से 30 साल 40 साल पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसे किचन हुआ करता था और वो किचन अब ऐसा दिखता है। मतलब पहले आपके सिपाही उस ठंडक में धुएं से भी बीमार हो जाते थे। तो आज के इस ग्लोबल सिनारियो में अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन एंड grabbing is very crucial. The global dynamics bring economic, environmental, and technological challenges, but also offer room for innovation and cross-cultural collaboration. In this particular environment, adaptability, practical problem solving, etc., जो पॉजिटिव चेंज है और उनको होना ही चाहिए। Let us quickly go through the fourth industrial revolution. Technological disruptions are taking place very fast. AI, ML, IoT, blockchain, cryptocurrency, इनका जमाना आ गया है। तो कुछ तो बेसिक स्टूडेंट्स को चाहिए। कैरियर तो अब यही होने वाला है। अगर लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी पढ़ना होगा उनको। एम्प्लॉयमेंट पे इनका इम्पैक्ट होना है। मेजॉरिटी ऑफ जॉब्स विल बी ऑटोमेटेड। उसमें बहुत से जॉब खत्म होंगे, कुछ नए जॉब क्रिएट होंगे। मोर एंड मोर जॉब विल बी क्रिएटेड इन टेक इंटेंसिव फील्ड्स। अब आपको बेसिक डिजिटल लिटरेसी नहीं चाहिए। जिसे मैंने कहा ना कि प्रोग्रामिंग छोटी बहुत आ गई, प्रोग्रामिंग तो बड़ी कह रहे थे चलो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट बनाना आ जाए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ जाए, कुछ टेबल सोबल्स बना लें, कुछ वर्चुअल क्लास कर लें, काम हो गया। अब इससे आगे जाना होगा। हमें टूल और टेक्निक सीखना होगा और बच्चों को टूल और टेक्निक बनाना सीखना होगा। So coding and programming skills, cyber security awareness, AI and data science proficiency. डेटा जिसके पास है वो राजा है। आज के जमाने में the person or the organization is having more and more data because there is a power in big data. You have to harness that. You have to develop AI and its application. Creativity and innovation is very important. और इसीलिए मैं डिजाइन थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करता हूं। वर्चुअल एंड ऑगमेंटेड रियलिटी, ये भी एक नया फील्ड है। इमर्सिव लर्निंग, वर्चुअल क्लासरूम, सिमुलेशंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, लैब्स वर्चुअली कर लेंगे, टूर किसी माइन का वर्चुअली कर लेंगे, किसी एक्सीडेंट साइट का वर्चुअल टूर हो जाएगा। हर इंडस्ट्री में इनका एप्लीकेशन है। AI, ML, IoT, data, healthcare, engineering and architecture design, green skills we talk about lot. हमने इसके उदाहरण भी देखे। तो हमें ग्रीन टेक्नोलॉजी जॉब में लोगों की ट्रेनिंग करनी होगी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में करनी होगी, रिसोर्स मैनेजमेंट में करनी होगी। व्हाट इज रिसोर्स? बेसिकली नेचुरल रिसोर्स इज द ओनली रिसोर्स। So environmental conservation and climate change adoption,
ये भी बड़ा फील्ड है जिसमें हमें बच्चों को स्किल ट्रेनिंग देनी होगी. What are the soft skill in digital age? इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए. किसको कैसे परसू करना है, कैसे किसको मोटिवेट करना है. और इमोशनल इंटेलिजेंस तो बहुत जरूरी है ग्लोबल वर्चुअल वर्क एनवायरनमेंट में. मैं अगर अपने को न संभालूं तो मैं क्यों बात कर रहा हूं, किससे बात कर रहा हूं. बंदे को एडाप्टेबल होना होगा, कंटिन्यूअस लर्निंग कल्चर अडॉप्ट करना होगा. माइंडसेट, कल परिवर्तन होगा, कल फिर कुछ और नया सीखना है. वो रिजिडिटी का जमाना गया. तो ई लर्निंग इवोल्यूशन है, ग्लोबल कोलैबोरेशन चाहिए. कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं. स्मार्ट शॉपिंग रिकमेंडेशन. सोशल मीडिया पर जाइए और केवल एक सर्च थोड़ी देर रुक के देख लीजिए. Now there will be n number of companies showing you the search. बिना पूछे कैसे हो रहा है. मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, ये फ्यूचर है. इनके बारे में पढ़ना होगा बच्चों को अगर उनको इस तरह का कैरियर बनाना है. और उनके अंदर इस तरह की चीजें होंगी तो उनको कॉम्पिटिटिव एज होगा, उनको जॉब पक्का मिलेगी. और जरूरी नहीं उसके लिए स्कूल जाए. ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. तो जिन कॉलेजेस में हर तरह के आप टीचर तो रख नहीं सकते, तो वहां अपने करिकुलम में इस तरह की चीजें रखिए कि ऑनलाइन ट्रेनिंग करके सर्टिफिकेशन लेके आए. कुछ परसेंटेज है इसके लिए, और उसका इवैल्यूएशन करने के लिए आप इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स बुला सकते हैं. डिजिटल मार्केटिंग, वॉइस सर्च, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, डिजिटल मार्केटिंग, ये सब नए फील्ड है. साइबर सिक्योरिटी, सो एथिकल हैकिंग, ब्लॉकचेन सिक्योरिटी, एआई ड्रिवन सिक्योरिटी, ये सोल्यूशन सब डिमांड में है. एंड आई हैव सीन a number of students with very basic background of, they are not very highly trained, but they have more inclination toward this type of development and they are doing wonders. Cloud computing, पहले हर चीज हार्ड ड्राइव में रखते थे, अब थोड़ा बहुत काम की चीज पेन ड्राइव में रख लिया, but majority they are in cloud. So we are using virtual storage space. So future is serverless computing, edge computing, advanced cloud security. ये सारे ट्रेंड है जो बच्चों को सीखना पड़ेगा. कोई एक जो उसके पसंद का हो. कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग, केमिकल इंजीनियरिंग में 190 बच्चे पढ़ते हैं और उसमें 150 से ऊपर तो यही पढ़ते हैं कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग. उनको कुछ भी दे दो, अगर प्रोग्रामिंग है तो उनका इंटरेस्ट है, नहीं तो कोई इंटरेस्ट नहीं. तो आपको भी तो कुछ आना चाहिए बेसिक इसका. तो कुछ लैंग्वेजेस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज आर पाइथन, रस्ट एंड जावास्क्रिप्ट. तो बच्चों को इसका बेसिक्स आना चाहिए. सॉफ्ट स्किल, अगेन सक्सेसफुल टीम प्रोजेक्ट करना है तो आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, क्योंकि आज ये बड़ी जरूरी चीजें हैं. एआई और एमएल का तो यूज आप डे टू डे लाइफ में देख रहे हैं. अब सबके घरों में एलेक्सा है, सीरी है, जो मन हो वो गाना सुन लीजिए एलेक्सा से. वो जमाना गया जब डिस्क प्लेयर था, कैसेट था, फिर पेन ड्राइव था, फिर हमारा व्हाट्स स्मार्टफोन है, उससे कुछ गाना सुनते हैं. एलेक्सा तो मुंह से बोल देना, सुनाती रहेगी जो कहिए. सीरी आपको मैनेज करता है. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, अब क्लाउड से भी ऊपर यूनिवर्सिटीज अपने सर्टिफिकेट्स को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के
हेल्प से सिक्योर करना चाहेंगे। हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी, कितने डॉक्टर पैदा करेंगे, दुनिया के कोने कोने में लोगों को इलाज देना है, तो बहुत से हेल्थ एंड फिटनेस एप्स आएंगे, health informatics, telemedicine, digital health solutions, all these will be valuable in time to come. Gadgets, solar powered. So in this dynamic job market, addressing constant change is crucial. Policy evolution is essential to equip them with the skills needed in the today's workforce. और एडाप्टेबिलिटी जो है इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करती है और इंडिविजुअल को इसलिए तैयार करती है। लेट अस गो बैक टू नेशनल स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी 2015, स्किल इंडिया 2, यही बेसिक था जिसने इंडिया में वोकेशनल ट्रेनिंग और स्किलिंग की बात की। हमने तय किया था कि हम हर साल इतने लोगों को स्किल्ड करेंगे, और उस समय एक साल में 3.1 मिलियन लोग स्किल होते थे, और ये माना गया था कि हम 500 मिलियन तक जाएंगे पर डे बाय 2022। So we are improving, but still long way to go. कम्युनिटी कॉलेज का कंसेप्ट अभी कायदे से आया भी नहीं है। I'm talking about strengthening them. भाई हर वोकेशन में कोई न कोई है, कोई मोटरसाइकिल बना रहा है, कोई बढ़ई काम कर रहा है, कोई स्मिथ का काम कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा, प्लम्बिंग कर रहा हो। अगर उसकी हम वहीं पर ट्रेनिंग कर दें एडवांस टूल से, तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। और हमें लगता है कि बहुत सी इंडस्ट्रीज को ये काम करना चाहिए, समाज को आगे आना चाहिए, एमएसएमईज को आगे आना चाहिए, जैसे सैमसंग टूल रूम है। मतलब जो लोग एजुकेशन में नहीं है, जो प्रोफेशंस में है, उनको भी वही देन एंड देयर लेट अस ट्रेन। वीवो प्रोग्राम क्यों चला? इसलिए कि जो लोग क्यों बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं चाहते, कुछ सीख के कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत सक्सेसफुल नहीं है प्रोग्राम्स। कहीं कहीं सक्सेसफुल है, वेयर देयर इज मेंटरिंग इज डन बाय द इंडस्ट्री, सम इंडस्ट्री। अगर कोई इंडस्ट्री इसके पीछे है तब तो ये प्रोग्राम सफल होते हैं, अदरवाइज हम जैसे टीचर्स के हाथ में पढ़ के फिर वही हो जाते हैं। सॉफ्ट स्किल बहुत जरूरी है सबके लिए। n नंबर, कम्युनिकेशन, टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये होलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। आप कभी भी टेक्निकल एबिलिटीज के साथ जब तक ये नहीं रहेंगे, कोलैबोरेशन नहीं कर सकते, अडॉप्टेबल नहीं हो सकते, तो आप सफल कैसे रहेंगे? तो अगर आपको वर्सटाइल वेल राउंडेड वर्कफोर्स चाहिए जो इस डायनेमिक प्रोफेशनलिज्म वर्ल्ड में थ्राइव कर सके और अपने साथ ऑर्गेनाइजेशन को भी आगे ले सके, तो सॉफ्ट स्किल चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इस पे 10 मिनट देता हूं तो अपने आप पहले लेक्चर का समय हो जाएगा। हमें लगता है 10 मिनट का ब्रेक है, लेकिन हम लोग उसको थोड़ा बढ़ाएंगे, 20 मिनट का ब्रेक रखेंगे, तो आप भी सुनने की स्थिति में होंगे और हम भी सुनाने की स्थिति में। पॉपुलेशन बर्डन टू ह्यूमन रिसोर्स, 140 करोड़ की पॉपुलेशन को ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट करना है। कैसे करें? मैंने कुछ की दिए हैं, की पॉइंट्स। Scientific observation. There are 3 kinds of observation: subjective, objective और scientific. Subjective मतलब आंखों से देखा और कानों से सुना तो विश्वास किया, बचपन से ही सिखाया गया है और हम यही करते आए और हर समय फेल होते हैं 90%। रीजन बीइंग कि हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं, या हम वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। वी आर बायस्ड। उससे बेहतर होता है ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन, डेमोक्रेसी। 100 people are observing something and 70 says this is right, then it is right. माना जाता है कि पॉपुलर चॉइस, लेकिन that is also not right. You know, popular belief can be swayed.
द बेस्ट इज साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन. ओनियन लेयर मॉडल. आप प्याज का छिलका छिलते जाइए, अंत में गांठ मिलेगी. क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम. कोई समस्या है तो समस्या की जड़ कहां है? Until unless you reach there, you cannot solve the problem. Second is self exploration. खुद के बारे में जानिए, इंट्रोस्पेक्ट करिए, शाम को मेडिटेट करिए, थोड़ी देर अकेले बैठिए और देखिए कि दिन भर क्या किया जिससे लोग खुश हुए. जिस काम से खुश हुए मतलब वो गुण आपके अंदर है. जिस काम से दुखी हुए मतलब वो गुण आपके अंदर नहीं है. और अपने गोल के हिसाब से आपको पर्सनालिटी ट्रेट्स मॉडिफाई करने हैं, अमेंड करने हैं. नेक्स्ट है मोटिवेशन. और यहाँ पॉपुलेशन अगर बर्डन है तो उसको एक्सट्रिंजिक मोटिवेशन चाहिए. आपको रोल मॉडल लाने होंगे. आपको उनको बताना होगा कि आप भी ये कर सकते हैं. का चुप साध ही रहा बलवाना. सीता जी को खोजने हनुमान जी गए, पूरी वानर सेना गई. जब नहीं खोज पाए तो मुंह लटका के बैठ गए. तब जामवंत वहां आते हैं और कहते हैं का चुप साध ही रहा बलवाना. यू कैन डू इट. तो हम भी जामवंत हैं, आप भी सीनियर हैं. आपको स्टूडेंट को उस ढंग से मोटिवेट करना पड़ेगा. नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन ऑफ एक्वायर्ड नीड. मैंने कहा था ना मॉडिफिकेशन कैसे करना है. नीड ऑफ अप्रूवल की डिग्री को कम करना है, नीड ऑफ पावर को कम करना है और नीड ऑफ अचीवमेंट को बढ़ाना है. तभी आप सफल होंगे. Next is activation theory. What is that? Everybody loves variety and stimulation into its environment. बोरिंग नहीं होना चाहिए. लेक्चर भी बोरिंग नहीं होना चाहिए. तभी आदमी पूरी एनर्जी के साथ काम करता है. Job enlargement. There should be a relation between frustration and job difficulties. आप इसलिए जॉब ना करें कि ज्यादा पैसा मिल रहा है. जो आपकी पर्सनालिटी को सूट करे ये बताना पड़ेगा टीचर को, काउंसलर्स को. लास्ट वन इज द लीडरशिप. वी नीड डेमोक्रेटिक लीडर नाउअडेज. वी डोंट नीड ऑटोक्रेटिक काइंड ऑफ लीडर. टीम मेंबर के साथ बैठकर लीडर गोल सेट करे, उनके साथ काम करे, उनसे पूछ के कौन सा काम कौन कर सकता है वो दे. और सफलता है तो टीम की है, असफलता है तो लीडर की है. काइंड ऑफ सिचुएशन नाउअडेज. तो अब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल स्किल पे एम्फेसिस है जो कि इंडस्ट्री के रिलेवेंस का हो. थियरी से हट के, थियरी से एडिशन में हमें रियल वर्ल्ड सिनारियो की लर्निंग सिखानी होगी बच्चों को. जो एप्लीकेशन ओरिएंटेड लर्निंग सीखेगा बंदा तो वो अपने प्रोफेशनल स्फेयर में प्रिपरेशन के साथ उतरेगा और सफल होगा. तो स्किल ट्रेनिंग से क्या होगी? यंग माइंड, कोई पॉजिटिव चेंज होगा. इससे क्या होगा? यूथ एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी. उनकी नॉलेज इंडस्ट्री के नीड के हिसाब से होगी. वो बेटर प्रिपेयर होंगे जॉब मार्केट के लिए. और उनका जब जॉब प्रोस्पेक्ट सुधरेगा तो जो स्किल्ड वर्कफोर्स है वो देश के इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करेगा. टेस्टिमोनियल्स बहुत जरूरी है. मैंने कहा ना जैसे डेटाबेस है वैसे टेस्टिमोनियल्स है जो सक्सेस स्टोरीज को डॉक्यूमेंट करेंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट हुआ. जो ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट है प्रैक्टिकल स्किल का, इंडस्ट्रियल एंड एजुकेशन का, उसकी स्टोरी बनानी होगी. और ये पावरफुल एडुकेसी टूल और टेस्टिमोनियल्स जो पॉजिटिव चेंज हो रहे हैं उसको वैलिडेट करेंगे. जब भी आप कुछ चेंज करते हैं चैलेंजेस होते हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन में, उसके अडॉप्शन में.
आप सब अचानक इंडस्ट्री, एक डिपार्टमेंट में लोग साथ नहीं आते तो अचानक सब कैसे साथ आ जाएंगे? तो कांस्टेंट होगा, रिसोर्स का कोऑर्डिनेशन के इश्यूज होंगे, बारी बारी से हर साल 4 साल 6 साल कंटिन्यूअस चेंज कैरिकुलम में करना इतना आसान नहीं है। लेकिन आपको ऐसा एजुकेशन देखना होगा जो रिस्पॉन्सिव हो। हम लोग ने जब पहली बार चेंज किया करिकुलम में तो हमें डर लग रहा था क्या होगा, हर आदमी डरा हुआ था, मेरा सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा तो मैं फिर कुछ नया पढ़ूंगा। अब ग्रेट सेट ऑफ, हम 190 की क्लास लेते हैं, उसमें एमटेक केमिकल, बीटेक केमिकल, पीएचडी केमिकल, पीएचडी केमिस्ट्री, पीएचडी बायोटेक्नोलॉजी और एक सब्जेक्ट पढ़ाना है। तो आपको प्रॉपर बैलेंस करना होगा। किसी को मैथमेटिक्स नहीं आती, किसी को केमिस्ट्री नहीं आती, किसी को बायोलॉजी नहीं आती, तो चैलेंजिंग तो है, लेकिन ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है। फिर से लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड अडैप्टेबिलिटी पे बात करते हैं। हर समय खुद को फिर से ट्रेन करना है, फिर से ट्रेन करना है, जो नया है सीखना है। थैंक यू। So I came to end of first lecture. Hello. Yes, sir. So let us break for 20 minutes. We'll be back by 5:45. 5:45 करीब वापस आए हम लोग। Okay, sir. जी सर। Thank you. Thank you. Okay, sir. Thank you. ओके सर। Yes, sir. बोलेगा ना तो बोलेगा क्वेश्चन सर। तो 5 भैया 5 भेजो ना, तुम क्या करेंगे देखो भी फीडबैक ये भी फॉर्म एट द एंड ऑफ द मीटिंग होगा या अभी? वो फॉर्मली मुझे लास्ट में वही है बराबर क्या नाम उसका इंग्लिश का नाम उसका लास्ट बनाने का अरे कहाँ में आएगा आया ना मैं ठीक है और मेरा नहीं मैं बोलूँगा उससे वो क्यों नहीं बात अरे
discuss one more lecture pertaining to skill development. Yeah. कुछ तो देख लेता हूँ अब क्यों लोग खेल को इसको बंद करके उस पे कर लेता हूँ to that presentation दिख रहा है क्या? अब देखिए एक मिनट. No, sir, it is not visible. Slides, so. Okay, my laptop is. नहीं करो. हाँ? तो अपने वाले पे कर दो. Yes, sir, we can see. You can see. Yes, sir. Yes, sir, it is visible. So let us start. So the second lecture, I'll be discussing the need and importance of skill development and what is we are going to do in skill-based education. So let us discuss first what are the life skills, the general one. अगर किसी से पूछा जाए कि लाइफ में क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो लाइफ हैंडल करने के लिए जरूरी है, तो पहली चीज होती है सेल्फ अवेयरनेस. क्या हम खुद को जानते हैं? मतलब वाई एम हियर, इस दुनिया में हम आए क्यों, कितने दिन के लिए आए हैं, क्या करने वाले हैं, व्हाट इज माई रोल इन दिस यूनिवर्स, इज एवरीथिंग नोन टू मी और नॉट. सेकेंड वाज एम्पैथी, हम दूसरों से कैसे बिहेव करते हैं, whether we are sympathetic towards them or not. Critical thinking ability है कि नहीं, हम सोच विचार के कोई काम करते हैं कि यूं ही कर देते हैं. Creative thinking, whether we are a good decision maker or not, that is the personality traits. Problem solving, whether we can communicate effectively or not. हम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसे और किस डिग्री का बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं कि नहीं. स्ट्रेस के कंडीशंस में स्ट्रेस को किनारे रख के क्या काम कर पाते हैं या नहीं. कहीं हम इमोशनल होके
ओवर रिएक्ट तो नहीं कर रहे हैं। तो इन सबको कैसे बैलेंस किया जाए, ये मोस्टली लाइफ स्किल मतलब सॉफ्ट स्किल्स है। मैं एक एग्जाम्पल से शुरू करता हूं, स्किल का क्या इंपॉर्टेंस है। इस फोटोग्राफ में आप देखेंगे दो भाई हैं, दिनेश राम बाबू। बनारस में एक सैलून्स की चेन है, दैट इज नोन एज अनोखा हेयर कटिंग सैलून। मैं इन बच्चों को बचपन से देख रहा हूं। When they were very young, they used to come to my home to give haircut to my father, who was sitting in the chair on the chair in the veranda, and they used to serve him. In even those days, back in 90s or 80s, this very young boy, उस समय भी ये कहते थे भैया एक दिन हम बढ़िया ट्रेनिंग करेंगे, बढ़िया सीख के आएंगे बॉम्बे से और बनारस के सबसे अच्छे हेयर कट देंगे। What I want intended to convey today कि कोई काम छोटा और बड़ा नहीं होता, होता क्या है कि आप कितनी शिद्दत से उसे सीखते हैं, कैसे उस काम में अपनी एक नई जगह बनाते हैं, कैसे लोग ये कह सकें अरे यार ये काम कराना है तो वो बहुत बढ़िया है। It's not that doing meticulously the things that is more important. तो कोई भी काम करेंगे आप अच्छा करोगे और sky is the limit. स्किल गैप एनालिसिस जैसा मैंने कहा था क्यों करते हैं? बेसिकली स्किल गैप एनालिसिस is an assessment tool done by the HR team of a company to understand whether their workforce current skill is up to the mark as per the need of the company. कंपनी के जिस स्किल की जरूरत है, जिस लेवल की, क्या वर्कफोर्स के पास वो है या नहीं, ये स्टडी करने के लिए स्किल गैप एनालिसिस करते हैं। हम कॉलेजेस में स्टूडेंट्स के साथ कर सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ जाना चाहते हैं, उनका क्या स्किल वहां जरूरत है, अभी उनके पास कौन से स्किल सेट है, कैसे टू फिल द गैप। दो तरह की चीजें हो सकती हैं। एक तो जो स्किल है उसको अपग्रेड करना है या कोई नई स्किल डालनी है। So there are two terms, one is upskilling and another is reskilling. Skill, knowledge, ability और competency, क्या फर्क है? स्किल मतलब सॉफ्ट स्किल, अगर यहां हम रख लें। नॉलेज मतलब चलिए हार्ड स्किल रख लेते हैं, टेक्निकल नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज। और नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज, स्किल मतलब सॉफ्ट एज वेल हार्ड। मोस्टली हार्ड स्किल कर लीजिए। एबिलिटीज को मैं सॉफ्ट स्किल करता हूं। अगर आपका हार्ड स्किल है, क्रिटिकल नॉलेज है, लेकिन फिर भी सॉफ्ट स्किल बेहतर नहीं है, तो आप कॉम्पिटेंट नहीं होंगे। To conduct gap analysis, you have to identify the current skill, identify the future skills, and the third one is identify the critical skills. जिस जोन में जाना है, जिस तरह की इंडस्ट्री में काम करना है, उस इंडस्ट्री में कौन कौन से क्रिटिकल स्किल्स है, on which basis your value will be there. So what skills are most valued by your company? What skills do employees need to do their job effectively and efficiently? What skills are currently on the rise in the industry? Which position could end up being automated? Are there any new technologies in the market that the workforce needs to be skilled in? ये क्रिटिकल स्किल्स होते हैं, कुछ नई जानकारियां जो कंपनी में आने वाली है। ऑटोमेशन होना है तो उसमें किस तरह का नॉलेज चाहिए।
तो अगर आपके पास क्रिटिकल स्किल है, फ्यूचर स्किल है और साथ में करंट स्किल है, तो क्रिटिकल प्लस फ्यूचर माइनस करंट इज द गैप. और स्किल गैप कैसे होगा? दैट हैज टू बी फिल्ड अप बाय सम काइंड ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. आप जो जानते हैं उसमें आपको ट्रेन कर सकते हैं, थोड़ी बहुत नई जानकारियां भी आपको दे सकते हैं. बट अगर बहुत ज्यादा नया काम है इंडस्ट्री में, न्यू सेट ऑफ स्किल्स आर रिक्वायर्ड, तो बेहतर है कि कुछ नए वर्कफोर्स लाएं जो वो स्पेशलाइज काम करें. सो इट्स ऑल डिपेंड how much upskilling is to be done, how much reskilling is to be done, and how much addition of new workforce is to be done. न्यू जनरेशन की स्किल्स क्या है? अब कौन सी स्किल्स है जो आदमी कह सकता है कि इस जनरेशन में इफ यू वांट टू बिकम ए सक्सेसफुल यू नीड ऑल दीज थिंग्स. फर्स्ट वन इज क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. आप एनालिसिस कर सकते हो, डिसेक्शन कर सकते हो, सिंथेसिस कर सकते हो, कोलैबोरेशन, एजिलिटी एंड एडाप्टेबिलिटी, इनिशिएटिव एंड एंटरप्रेन्योरियलिज्म, effective oral and written communication. You can access information, you can analyze information, you can conclude whether you are curious or not. You got the imagination power. Then, so are mostly soft skills. And then it says कि आपको कौन सी टेक्नोलॉजी आती है और कौन सा टूल हैंडल करना आता है. सॉफ्ट वेल एज वेल हार्ड. अब एक कहानी मैं यहां पर सुनाना चाहता हूं आपको, कछुआ और खरगोश की. हम सबने सुनी है कछुआ खरगोश की कहानी. Even if you are on the right track, you will get run over if you just sit there, Will Roger. पहली कहानी हमने सुनी थी, कछुआ खरगोश के बीच में रेस होता है. खरगोश ओवर कॉन्फिडेंट है कि हम तो जीत जाएंगे. कछुआ कहां हमारे सामने आएगा. ओवर कॉन्फिडेंस में खरगोश आधे रास्ते में सो जाता है और कछुआ धीरे धीरे रेस जीत जाता है. दूसरे दिन खरगोश को बड़ी ग्लानि होती है. वो कहता है कि रेस फिर से होगा. फिर से रेस होता है और नाउ खरगोश इज नॉट गोइंग टू स्लीप. सोता नहीं है, वो सीरियसली कंपीट करता है और वो जीत जाता है. बिकॉज ट्रैक उसका होता है. He can better run as compared to tortoise. फिर कछुआ खरगोश के पास जाता है और कहता है ना, बेस्ट ऑफ 3 होना चाहिए. Any competition is best of 3. Why only 2? फिर से रेस होता है और कछुआ क्या करता है, इस बार ऐसा रेस बनाता है कि कुछ देर जमीन पे चलना है. Then there is a water, river. Then there is again 1 kilometer they have to walk and run. So what happens now? खरगोश बहुत तेजी से दौड़ता है, नदी किनारे आगे चुपचाप खड़ा हो जाता है. He cannot swim. कछुआ धीरे धीरे आता है, फिर नदी में उतरता है, तैर के उस पार चला जाता है और जीत जाता है. फिर दोनों मिलके साथ बैठते हैं, कछुआ और खरगोश, और कहते हैं कि जब जमीन पे चलना हो तो मैं तुम्हारी पीठ पे आ जाता हूं. कछुआ खरगोश की पीठ पे. और जब नदी में चलना हो तो खरगोश कछुए की पीठ पे. दोनों जल्दी पहुंच जाएंगे मंजिल पे. कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पे. So this is known as cooperative competence.
This is now known as the teamwork. Everybody is having some kind of skills. हर आदमी के पास कुछ न कुछ set of conduct and qualities होती है. So how to make a good team? Team building बहुत बड़ा काम है आज के जमाने में. Team performance, collaboration, इसको time and again we are discussing. What is the importance of skill development? ये कहता है the skill development process helps student think beyond grade. पहले यही होता था कि 9.8 पॉइंट आ जाए, 9.4 आ जाए. अब धीरे धीरे क्यों लगने लगा है, क्या जरूरत है इसकी? स्किल डेवलपमेंट से हम लोगों की कैपेबिलिटी को टैप कर पाते हैं, उनके रियल लाइफ स्किल को डेवलप कर पाते हैं और उनको तैयार करते हैं जिससे उनके चॉइस के कैरियर में वो सफल हो. So this skill-based learning improves employability and helps you to earn more. Or when everybody will be earning more and more, this will boost the economy of the country. And our growth, financial growth will be promoted. Next, skill-based learning helps students develop problem-solving strategies and effective communication techniques. लीडरशिप स्किल बेहतर होती है. आप चीजों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं और आप अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज इनकलकेट कर सकते हैं. क्रिएटिविटी बढ़ती है, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है, एनालिटिकल थिंकिंग बढ़ती है. जब आप चीजों को जोड़ोगे, तोड़ोगे, इससे प्रैक्टिकल करोगे, उसे असेंबल करोगे, डीअसेंबल करोगे, तो आप रियल लाइफ सिचुएशन को हैंडल करने के लिए खुद को तैयार करते हो. क्यों जरूरत पड़ी? व्हाट वाज द नीड ऑफ स्किल डेवलपमेंट इन हायर एजुकेशन? What was happening that a large chunk of the unemployed population consisting of a highly educated youth who failed to find employment because of a lack of skills. और कभी कभी स्किल्ड उसका कोई नॉलेज नहीं है. अभी समाज में ऐसे लोगों की भीड़ थी. डिग्री है, आता कुछ नहीं, आता है डिग्री नहीं. So connect these two dots, that is skills and education. ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हायर एजुकेशन में शुरू किया गया. So the need to provide skill based learning in a higher education to help students receive vocational training besides academic to improve their chance of better employment or successful career. तो आप क्या है, आप चाहे साइंस पढ़ रहे हो, चाहे आर्ट पढ़ रहे हो, चाहे कॉमर्स पढ़ रहे हो, चाहे मेडिसिन पढ़ रहे हो, चाहे इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, तो आप एक प्रिपेयर्ड वर्कफोर्स के रूप में बाहर आओगे. तो स्किल डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? कुछ भी तो सिखाते नहीं फिरेंगे ना. मैं 2 लेक्चर में बहुत बातें कर रहा हूं. तो आपको एक कैप्सूल डिजाइन करना होगा डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड द सबसेट ऑफ द स्टूडेंट्स, डिपेंडिंग अपॉन देयर पर्सनल चॉइस एंड कैपेबिलिटीज. तो स्किल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? आपको गोल पता है, किस लिए करना चाहते हैं ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, या किस लिए आपका बच्चा पढ़ने आया है. व्हाट इज हिज एंड मोटिव? उसके करंट स्किल को एनालाइज करिए. जो बनना चाहता है उसको कंपेयर करते हुए गैप एनालिसिस करिए. लोगों से फीडबैक लीजिए. कौन ट्रेनिंग करेगा? व्हाट विल बी द रिसोर्स? लुक फॉर दैट. अपने कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन में एक लर्निंग कल्चर स्टैब्लिश करें. एंड एज पर द नीड यू डू अपस्किलिंग और रीस्किलिंग. As already told, upskilling means improvement in the same domain, जहां आपको कुछ आता हो. And reskilling मतलब कुछ नहीं आता, यहां कुछ शुरू करना है.
और फिर इफेक्टिवनेस को इवैल्यूएट करिए और अपने ट्रेनिंग एक्सपीरियंस को फिर इंप्रूव करिए। ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए। एक स्किल बहुत बड़ी है, परसिवरेंस, सॉफ्ट स्किल। अगर आपको पैनिक होना नहीं आया, सॉरी आप पैनिक होना कंट्रोल कर गए, तो आप बड़ा बड़ा काम कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स को इस सिचुएशन में डालना और टेस्ट करना कि उधर देयर इज परसिवरेंस आर नॉट। रसरी यावत जादते सिल पर परत निशान। और यहाँ पर एक 2 frogs इन मिल्क पार्ट एक स्टोरी में जनरली शेयर करता हूं, इंटरनेट पे वाइडली अवेलेबल है। 2 मेढक, एक मोटा और एक पतला, घूमने निकले। One is quite fat, one is thin. They were roaming in an industrial area and suddenly they fell into a milk pot, you know. Parag dairy, Amul dairy might be the industry. So they started paddling, not to, drown. They tried to come out of that. वो खुद तैरते थे, निकलने की कोशिश करते थे, फिसल के फिर गिर जाते थे। तो उसमें जो मोटा वाला था वो थकने लगा एंड ही सेड, जब मरना है तो क्यों तैरना। ये जो पतला वाला था कहा, नहीं, जब तक सांस है तब तक आस है। कीप ऑन ट्राइंग, यू विल बी सक्सेसफुल। फर्स्ट वन लेफ्ट, he sank dead. The second one kept trying. And what happened? Suddenly, a big fat thing come in beneath him, and using Newton's third law of motion, action is equal to reaction, he came out. The question is, what was there beneath him? वो इतना चर्निंग किया मिल्क का कि वो मक्खन बन गया, बटर। So you see, perseverance is very important, and that has to be taught to the students. विजन क्या था स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव का इंडिया में? फिर से नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015, which was the basic. Scale was to train 3.1 million to 15 million to 500 million people by 2022. The program should be highly inclusive. मेल फीमेल्स में कोई डिफरेंस नहीं करना है, रूरल अर्बन डिवाइड को एड्रेस करना है, and whether it is organized or unorganized, we have to train everybody. And this initiative was dynamic and demand based. हमारा वर्क फोर्स कैसे चेंजिंग डिमांड वर्क प्लेस की और टेक्नोलॉजी को उससे कोप अप करे। जो ट्रेनर्स हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए भी कंपटीशन क्रिएट किया गया, अकाउंटेबिलिटी बढ़ाया गया। और अंत में जितनी मिनिस्ट्रीज थी, पहले एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, एमएसएमई, इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री, आईटी मिनिस्ट्री, एवरीबडी वाज गोइंग फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये हुआ कि कैसे उनके बीच कोहेरेंस हो, कोऑर्डिनेशन हो, कैसे इंडस्ट्री को साथ लाएं, कैसे स्टेक होल्डर को साथ लाएं, और एक ओवरऑल स्ट्रक्चर बने जिसे डिसेमिनेट हो दिस काइंड ऑफ स्किल ट्रेनिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप। स्किल डेवलपमेंट में इंटरनेशनल एफर्ट क्या है? इंटरनेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, which does work for smart education, smart research, smart skills, smart people, smart innovation. आज ग्लोबल डिमांड में what is smart? What kind of education should be given so that the student will be equally represented, can get himself successful in any environment? Second one is the Global Skill Development Council. What they do? Certification, ISO, Six Sigma, etc. And then NSDC International. ये रिक्रूटमेंट में हेल्प करती है ग्लोबल स्केल में, और NSDC के साथ they coordinate. So this is the overall ecosystem in India. सेंटर में स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसका काम क्या है? नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड coordinating between different skill efforts.
There are three parts then: NSDA, NSDC, and DGT. National Skill Development Agency, National Skill Development Corporation, and Directorate General of Training. इनके अलग अलग काम है, किसी का क्वालिटी का काम है, किसी लिंकेज का काम है, किसी का ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन करने का काम है. और फिर सेक्टर स्किल काउंसिल्स आर देयर जो असेसमेंट और सर्टिफिकेशन करते हैं. फिर पॉलिसी मेकर्स, प्राइवेट सेक्टर और एक्सिक्यूटर के बीच में एक रिलेशन है. एंड सिमिलर इज द केस विद स्टेट. You are having state skill development missions and they create state specific skill policy and then coordinate with different programs. Let us now discuss what is the 5 priority pillars for 4th industrial revolution in case of India. हमको रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जिससे नए नए बिजनेस मॉडल हम डिलीवर कर सके. कैपिटल की एक्सेस होनी चाहिए. जो भी नया स्टार्टअप है, एसएमईज है, उसको पैसे नहीं मिलेंगे तो नाम काम कैसे शुरू करेगा. आईपी बेस्ड होना चाहिए. कोई रूटीन बिजनेस न स्टार्ट करें. अगर हमने 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के हिसाब से ग्रीन टेक्नोलॉजी में, डेटा में, आईटी में ज्यादा से ज्यादा पेटेंट्स किए, इनोवेशंस किए, तो हम बेहतर इंडस्ट्री क्रिएट कर पाएंगे. देन स्किल ट्रेनिंग, because we have to align our workforce to the demand of emerging technology. Then strengthening research. आप फंडामेंटल रिसर्च नहीं करोगे तो आपका इनोवेशन इकोसिस्टम इंप्रूव नहीं करेगा. बेसिक अंडरस्टैंडिंग के पहले, चीजों को इन टोटलिटी समझने के पहले आप नए इनोवेशंस नहीं कर सकते. इंडस्ट्री 4 क्या कहता है भाई? बिग डेटा एनालिटिक्स, आईओटी, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, रोबोटिक्स, machine to machine information transfer, all these are new area where lot of opportunity will be created. एक केस स्टडी लेते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का ले लिया. कौन सी टेक्नोलॉजी से क्या फायदा? इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की बात हम लोग कर रहे हैं. जैसे कोबोट्स, सिमिलर टू रोबोट्स, दिस इज कोबोट्स, कोलैबोरेटिव रोबोट्स. भाई जो काम एक आदमी 507 यूनिट करता था एक साल में, हो सकता है 804 यूनिट पर ले. मटेरियल हैंडलिंग, वेल्डिंग, डीबरिंग, बोल्ट टाइटनिंग, सीलेंट एप्लीकेशन, मशीन टेंडिंग, all these work needs collaborative robots nowadays. 3D प्रिंटिंग, पहले प्रोजेक्ट डिजाइन होता था, सीट पे होता था, फिर कंप्यूटर पे होने लगा, फिर उसको प्रिंट निकाला गया, लोगों ने अपने फीडबैक दिए, फिर उसको कहीं कोई मॉडल बनाने के लिए कोई कास्टिंग चीज आई, वो बनाया गया. बड़ी कठिन काम होता था. बट 3D प्रिंटिंग हैज रिवोल्यूशनाइज्ड. आप फटाफट कंप्यूटर में डिजाइन करिए, वो प्रोडक्ट बना के वो रख देगा. तो व्हाट इज हैपनिंग? रिडक्शन फ्रॉम कंसेप्ट टू द मार्केट, रिडक्शन इन टाइम. देन आप ड्राइविंग कर रहे हो तो एक्सपीरियंस कैसा हो? ड्राइवरलेस ड्राइविंग भी होने लगी, कारलेस ड्राइवरलेस कार. सो हाईली पर्सनलाइज्ड एंड स्मार्ट सेफर ड्राइविंग एक्सपीरियंसेस. सो आपको एआई, मशीन लर्निंग, आईओटी सबका एप्लीकेशन करना होगा. तो अभी देखिए कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी है, कौन से जॉब है जो थ्रेटेंड है, कौन से नए जॉब क्रिएट होंगे और नए जॉब के लिए कौन सा स्किल चाहिए. ऐसे आप हर इंडस्ट्री का एनालिसिस कर सकते हो एज पर योर एक्सपर्टाइज. तो न्यू टेक्नोलॉजीज अगेन आईओटी, बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, 3D प्रिंटिंग. कौन से जॉब थ्रेटेंड है? वेरी बेसिक जॉब, वेल्डिंग टेक्नीशियन, पेंटिंग टेक्नीशियन, इंस्पेक्शन असिस्टेंट, इन प्लांट मटेरियल हैंडलर, प्रेस मशीन ऑपरेटर. इस तरह के जॉब अब नहीं रहेंगे, अब वो जॉब बदल जाएंगे. अब कैसे जॉब चाहिए आपको? 3D प्रिंटिंग टेक्नीशियन, व्हीकल साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट,
ऑटोमोबाइल एनालिटिक इंजीनियर, सस्टेनेबिलिटी इंटीग्रेशन एक्सपर्ट। अब आपको समझना होगा कि इन दोनों में क्या फर्क, अब ये इसके लिए कितनी अपस्किलिंग और रीस्किलिंग चाहिए, और नए जॉब क्या होंगे, नए स्किल्स क्या चाहिए। दीज आर कॉग्निटिव एबिलिटीज, प्रोसेस स्किल्स, सिस्टम थिंकिंग, आईटी एंड हार्डवेयर स्किल्स। तो अब जॉब के नाम कैसे बदल जाएंगे, एक एग्जाम्पल है ऐसे ही कि डिजाइन इंजीनियर को डायरेक्शन डिजाइनर कह सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर को मैकेट्रॉनिक्स कंट्रोल इंजीनियर, जहां इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल एक साथ जुड़ जाएंगे, बहुत सी डिस्क्रिप्शंस होंगे। क्ले मॉडल बनते थे, अब 3D क्ले मॉडलर हो जाएगा। सो कैसे करेंगे, डिमांड को कैसे एसेस करेंगे। भाई एजुकेशनल सिस्टम है, वर्क फोर्स है, आउटसाइड वर्क फोर्स है, इनको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में से कनेक्ट करना है, इनको ट्रेनिंग कराना है। कौन लोग कराएंगे भाई, इंडस्ट्री है, सेक्टर स्किल काउंसिल है, तो एक जॉब रोल स्टैंडर्ड बनाएगी, दूसरा कोर्स अलाइन करेगी, फिर इंडस्ट्री एम्प्लॉयर है और इंटरनेशनल एंगेजमेंट है, इनके थ्रू हम ट्रेनिंग किए, सर्टिफिकेशन किए, असेसमेंट किया। और जैसी जरूरत है, अगर इंडस्ट्री सर्टिफिकेशन है तो पर्सन विल बी प्लेस्ड, अगर वो अपना अपग्रेडेशन, और अगर उसने ऐसे स्किल सेट ले लिए, रिस्क टेकिंग, इनोवेशन, इनिशिएशन, देन विल गो फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। तो फोर्थ IR हर जगह आ रहा है, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, उसके लिए रीस्किलिंग और अपस्किलिंग पड़ेगी, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे एकेडमिया हो। तो ये तीनों को काम करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने क्या किया, मेक इन इंडिया ले आए, PPP मॉडल ले आए, स्किल इंडिया ले आए, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी, क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग एंड वोकेशनल एजुकेशन, टेक्नोलॉजी एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की क्वालिटी इंप्रूव करनी होगी। इंडस्ट्री क्या करेगा, रीस्किलिंग करेगा, लीडरशिप को फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के हिसाब से तैयार करेगा, विल चेंज इंफ्रास्ट्रक्चर अकॉर्डिंगली, विल आल्सो डू लॉट ऑफ R&D to improve upon or to develop the 4R technologies. Academia क्या करना होगा, you have to update your course content, you have to provide result oriented skills, you have to emphasize more and more on research and innovation, and you have to go for industry linkage. How ICT is going to TBT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और यहाँ पे बात कर रहा हूँ टेक्नोलॉजी एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अगर ICT को TBET में नहीं डालेंगे तो ये छूट जाएगी। अब लेथ मशीन पे ट्रेनिंग तो नहीं देना है, जो नई मशीन आई है उसमें ट्रेन करेंगे। और ICT से द क्लासरूम विल बी हाइटिंग लर्निंग स्पेस, ये डिजिटल डिवाइड को ब्रिज करता है, और हम इजीली इंडस्ट्री अलाइन कोर्सेस और उसे अडैप्टिव कंटेंट डेवलप कर सकते हैं। वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट अबाउट दिस इन लास्ट लेक्चर, कैसे इंटरएक्टिव और इमर्सिव लर्निंग करते हैं। बहुत तरह तरह के गैजेट आ रहे हैं, आप बच्चों को दीजिए, छोटे बच्चों को झूला क्या होता है, झूलने का एक्सपीरियंस क्या है, आप झूले पे ले जाइए, वहां झुलाइए, या क्लास में गैजेट है सबको पहना दीजिए और झूलने का एक्सपीरियंस वो देखिए कैसा करता है। तरह तरह की चीजें आ गई हैं जो ऐड करती हैं क्वालिटी में। और ओवरऑल राइट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द डिमांड ऑफ ट्रेनिंग टू सर्टिफिकेशन, एवरीथिंग कैन बी गिवन ऑनलाइन। ये भी हम करना शुरू कर दिए हैं। अब स्किल गैप के बाद स्किल मैपिंग है, वो भी पार्ट है स्किल गैप का। जो मैंने कहा ना, जब आप कहते हैं कि अभी कौन सी स्किल है, कौन सी स्किल फ्यूचर में आएगी, कौन सी क्रिटिकल स्किल है, ये सब समझने के लिए ही तो स्किल मैपिंग करते हैं। तो आप हर एम्प्लॉइज की कॉम्पिटेंसी को, उसके पर्टिकुलर स्किल को किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के सेंस में या टास्क के सेंस में आप एनालाइज करोगे। We'll try to understand the abilities of the employee और उनके कंपनी को क्या फायदा है, कितना फायदा है।
These mappings basically gives you the strength and weaknesses of each employee. कुछ लोग स्किल मैपिंग को कॉम्पिटेंसी मैपिंग भी कहते हैं. इन दोनों में बहुत थोड़ा सा फर्क है. तो कहने का मतलब स्किल अगर एक सिंगल एबिलिटी है किसी चीज को टास्क को परफॉर्म करने का, तो कॉम्पिटेंसी मतलब उसमें स्किल भी आ गया, एटीट्यूड भी आ गया, नॉलेज भी आ गया. सो यू सी, कोई कंपनी है उसमें टीम मेंबर ABCDEFGH है, और स्किल्स क्या चाहिए हमारी कंपनी में? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, राइटिंग का, पब्लिक स्पीकिंग का, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का, अकाउंटिंग का, रिक्रूटमेंट का, काउंसलिंग का, इतने तरह के जॉब है. किसके अंदर कौन कितना है आप देख लीजिए. अब जैसे आप टीम मेंबर A की बात करें तो उनके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की 75% एबिलिटी है, लेकिन टीम मेंबर C उसमें कुछ नहीं एबिलिटी है, या टीम मेंबर D की केवल 25% एबिलिटी है. राइटिंग की बात करें तो टीम मेंबर C कुछ नहीं जानता, 1/4, लेकिन टीम मेंबर H बॉस है. प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में BCD 0, टीम मेंबर H बॉस. तो यू सी किसके अंदर कौन सी कॉम्पिटेंसी है. उससे क्या फायदा होगा कि कुछ लोग तो उसी से ट्रेनर मिल जाएंगे आपको. ये ट्रेनिंग देनी है भैया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, H देगा. तो आप इन हाउस रिसोर्सेज भी क्रिएट कर सकते हैं. आपकी स्टूडेंट हैं, उनके अंदर स्किल मैपिंग कर दें तो उसमें से कुछ स्टूडेंट्स निकल जाएंगे जो कुछ स्टूडेंट्स को ट्रेन करेंगे. बट ऑल दिस नीड्स टाइम एंड टूल्स. व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ स्किल मैपिंग? आप एक ऑर्गेनाइजेशन के नीड को विजुलाइज करते हैं. आपको एक जर्नलिस्ट और एक स्पेशलिस्ट एम्प्लॉय के बीच में डिफरेंस पता चलता है. आपको ये पता करना होगा कि कैसे इंडिविजुअल एम्प्लॉय को इंप्रूव किया जा सकता है. और अभी जो आपकी कंपनी में गैप है, दैट विल बी आइडेंटिफाइड एंड यू कैन आल्सो मॉनिटर द प्रोग्रेस विद द ट्रेनिंग. तो तरह तरह के मैट्रिक्स होते हैं, स्किल मैट्रिक्स, कॉम्पिटेंसी मैट्रिक्स, कैपेबिलिटी मैट्रिक्स. कॉम्पिटेंसी और एबिलिटी जोड़ दिया कैपेबिलिटी. स्किल मैट्रिक्स में सॉफ्ट स्किल और नॉलेज जोड़ दिया तो कॉम्पिटेंसी, एटीट्यूड. तो आप इस तरह की अपने कर्मचारियों की मैट्रिक्स भी बना सकते हैं. अब व्हाट इज हॉरिजॉन्टल एंड व्हाट इज वर्टिकल मैपिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट है. हॉरिजॉन्टल मीन्स डोमेन नॉलेज. You will be expert in particular subject. Maybe he is expert in energy, environment, chemical engineering, physics. लेकिन अगर आपको वर्टिकल डेवलपमेंट करना होगा तो यू नीड सॉफ्ट स्किल्स. अब ऐसे हम बताएं, जैसे कंप्यूटर है, हार्ड ड्राइव हो गया हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट, एंड प्रोसेसर स्पीड दैट इज वर्टिकल डेवलपमेंट. तो अगर आपको सफल बनना है तो दोनों चाहिए. स्मार्ट कंप्यूटर कौन होगा? जिसकी ड्राइव भी बड़ी होगी और जिसका प्रोसेसर स्पीड भी बढ़िया होगा. तो अगर आपको एक ही पोजीशन पे बड़ा एक्सपर्ट बनना है, यू आर वेरी गुड टीचर. आप इन डोमेन नॉलेज को इंक्रीज करिए, उसको डिलीवरी सीखिए. केवल नॉलेज से नहीं, डिलीवरी भी चाहिए. लेकिन अगर आपको सफल होना है डिफरेंट डोमेन में तो वर्टिकल डेवलपमेंट भी चाहिए, जिसे आप एजाइल हो, मूव कर सके तेजी से लैडर पे. In difficult moments, behave like a duck, keep calm and unruffled on the surface, but keep paddling away like crazy underneath. Difficult situation में क्या होता है, हमें अपने बच्चों को सिखाना होगा. एक तो है कि हम कबूतर की तरफ बिहेव करें. खतरा आ रहा है, हम उसके प्रति अनजान बने रहें, आंख बंद करके बैठ जाए, सोचे कि मैं नहीं देख रहा हूं बिल्ली को, तो बिल्ली मुझे नहीं देखेगी.
What will be the result? बिल्ली तैयार कर, बट सिचुएशन वो पंख फड़फड़ा के नहीं भागती, बड़ी स्मूथली भागती है, लेकिन अंदर बहुत तेज संघर्ष चल रहा होता है, और जब खतरे से दूर चली जाती है तब पंख फड़फड़ा के थोड़ा सा एंजॉय करती है। तो आप भी यही करें, जब भी आप किसी कष्ट में हो, किसी के पास रोने जाने की जरूरत नहीं है। आप अंदर संघर्ष करें, उससे निकलने की कोशिश करें, दूसरे तो केवल फायदा उठाएंगे, ये सोच लीजिएगा। सो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मैपिंग क्या है, जो मैंने बताया था, एक कंप्यूटर का हार्ड ड्राइव, दूसरा प्रोसेसर स्पीड, और अगर आपके पास दोनों है, मतलब आप एनालाइज भी कर सकते हैं और डेटा स्टोर भी कर सकते हैं, तब आप बेटर प्रिपेयर हैं किसी भी सडन और अनएक्सपेक्टेड चेंज को हैंडल करने में। सो यू विल बी एबल टू हैंडल एनी सिचुएशन व्हिच कम्स इन द वर्क एनवायरनमेंट। तो सॉफ्ट स्किल वर्टिकल डेवलपमेंट से डायरेक्टली रिलेटेड है। आप लोगों से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, डिफरेंट लेवल ऑफ अथॉरिटी से कैसे डील करते हैं, ये सब सॉफ्ट स्किल सिखाता है। इससे पर्सनल स्किल्स इंप्रूव होते हैं। कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग वर्क एनवायरनमेंट में आप अपने को कैसे पेश करते हो। So in vertical development, we start by challenging old assumptions and testing new hypotheses. आप किसी भी सिचुएशन में पुरानी चीजों पर भरोसा नहीं करते हो, नए ढंग से उसको डील करते हो। ये तो सिचुएशन में थोड़ा बात करता हूं, डंकी और एलिफेंट। जनरली ये अज्यूम किया जाता है कि donkeys are less wise as compared to elephants. पहली स्टोरी देखिए, एक गधा जो बूढ़ा हो गया है, उसका धोबी जो मालिक है, वो कहता है इसको रिलैक्स कर दो, लेट हिम एंजॉय, आई विल नॉट बी यूजिंग हिम। वो घास चरते हुए जाता है और एक कुएं में गिर जाता है। उसे निकालने की पूरी कोशिश होती है, जब फेल हो जाता है उसका मालिक, तो सोचता है चलो इसकी कब्र बना देते हैं। उसके ऊपर जब मिट्टी फेंकी जाती है, तो मिट्टी जब उसके पीठ पे गिरती है, तो वो पीठ को हिला के मिट्टी नीचे गिराता है और मिट्टी के ऊपर चढ़ जाता है, और धीरे धीरे इस प्रोसेस से कुएं से बाहर आ जाता है। हमारे साथ क्या होता है, जब भी स्ट्रेस आता है तो हम स्ट्रेस में दब जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। तो जब तक आप स्ट्रेस को उठा के नहीं फेंकेंगे एक किनारे, आप सफल नहीं होंगे। Whatever new situation you are facing. दूसरा, हाथी का बच्चा एक मोटी रस्सी से बांध दिया गया, बहुत उछला, तोड़ दिया, फिर एक मोटी रस्सी बांध दिया, अब वो बहुत बड़ा हाथी हो जाता है। Now he is having very staunch belief that I cannot break this rope. एक बार फेल होने से उसने अटेम्प्ट करना छोड़ दिया, और ऐसा हमारे स्टूडेंट्स करते हैं। तो कोई बताना होगा फेल्योर। नाउ देयर इज अ नेशनल स्किल इंडेक्स एंड नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटी इंडेक्स। किस क्षेत्र में सरकार के देश के किस तरह के एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, किस तरह की इंडस्ट्री है, और किस तरह का पॉपुलेशन है, अकॉर्डिंगली हमको इसकी का एक मैप बनाना होगा। इंडेक्स ज्यादा होगा, इसका मतलब उधर हमें ज्यादा फोकस करना है। So this wise there is a process of creating national skill index and national development priority index। अपने आउटपुट से है। इंजीनियरिंग की केस में इंडस्ट्री में जाने वाला है, तो हमें अपने करिकुलम को इंडस्ट्री से सिंक्रोनाइज करना है। तो कैसे होगा, इंडस्ट्री वाले आपके साथ बैठेंगे, आप इंडस्ट्री वालों के साथ बैठेंगे, दोनों लोग मिलके इस काम को करेंगे। लॉ के स्टूडेंट है तो उनको जुडिशरी में जाना है या उनको प्रैक्टिस करने जाना है,
वो लोग वहां बैठेंगे एक साथ, sit down together, see what are the changes in their professional domain and do whatever required. इस तरह हर फील्ड के लिए चीजें हैं, और कोई भी फील्ड हो, इंडस्ट्री 4 का कॉन्सेप्ट तो आपको करिकुलम में डालना ही डालना है। अब ये तो मैंने फिर इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दिया, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में लिख दिया। I'll not talk about that. So, whatever the automation possibility, whatever the application of AI, ML, IoT, I could see into my branch. Whatever the importance of data I could perceive, I have to integrate those things into my domain knowledge. Then only our students will be meaningful to the society. अब किस तरह की नौकरी किसको कैसे मिल रहा है, 2016 से 2022 का एक सर्वे, किस डिग्री की क्या वैल्यू है, आप देख लीजिए। बीटेक भी अब 50% पे रह गए हैं, MBA की भी वही हालत है, आर्ट्स वाले ग्रेजुएट्स की एम्प्लॉयबिलिटी और कम हुई, कॉमर्स की भी कम हुई, BSc 35-38%. So you see, until unless these degrees will be amalgamated into skills, तो कैसे की स्किल हो रही है इस डिजिटल एज में, वो भी यहाँ लेफ्ट साइड में दिखा है, पढ़ लीजिए। एथिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी से लेके कम्युनिकेशन स्किल तक। सो अपस्किलिंग इज वेरी मच रिक्वायर्ड हर इंडस्ट्री में, हर ऑर्गेनाइजेशन में। जो करंट वर्कर परफॉर्मेंस है उसको इंप्रूव करना है, अदरवाइज इन द एरा ऑफ इंडस्ट्री 4 आप रिडंडेंट हो जाएंगे। और टीचिंग कैरियर को तो बड़ा खतरा है। मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, वो सब्जेक्ट हर IIT में कोई ना कोई प्रोफेसर पढ़ा रहा है, एंड दैट इज अवेलेबल ऑनलाइन। NEPTL से कितने भी ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं वर्ल्ड वाइड, MIT में जो पढ़ा रहा है, और मेरे बच्चे को, स्टूडेंट्स को एवरीथिंग इज अवेलेबल। मेरी क्लास में क्यों आएगा जब तक मैं कुछ नया ना दूं उसको? तो हर्डल्स है, चैलेंजेस है, हाउ टू क्रॉस दोज हर्डल्स। टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी सब हैं, तो क्या हम बिजनेस ना शुरू करें? मेरा भी जहां है, मेरा भी आसमां है, और मेरी भी ताकत है, मेरी भी हस्ती है। सो योर एटीट्यूड इज द की, एंड देन हाउ यू प्लान एंड हाउ यू स्ट्रेटेजाइज। अब नेक्स्ट मैं ले रहा हूं एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप इंक्यूबेशन लैब कैसे शुरू करें, कैसे करते हैं कॉलेजेस में। तो मैं अपना केस स्टडी डालता हूं यहाँ, और as I was the key behind all these initiatives, that is why I discuss this at every forum. इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूट के अंदर क्लोजर लिंकेज को बनाने के लिए हम लोगों ने AICT से IIP सेल क्रिएट कराया 2000 में, और फिर क्लोजली काम करना शुरू किया। 2006 और 9 के बीच में 3 साल एंटरप्रेन्योरशिप जो हम लोगों ने समझना शुरू किया था, we collaborated with EDI Ahmedabad and started their open learning program in entrepreneurship, a kind of diploma. साल में 2-2 बैच करते थे, बच्चे इसको पढ़ते थे, और इससे basics of entrepreneurship they are trying to understand. Then AICT की सपोर्ट से 2005 में we started entrepreneurship management development cell. तो हम लोगों ने भी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। We created forum for people's knowledge. होती है ना, land to lab and lab to land, we talk about that.
हम कुछ भी लैब में रिसर्च कर रहे हैं, अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं अप्लाई होगा। तो हम जो रिसर्च करके प्रोडक्ट लाए उसको फील्ड में भेजें, फीडबैक लें, और जो फील्ड में जो काम करते हैं, किसान खेती कर रहा है, उसने कोई इनोवेशन किया, उसको हम लैब में ले आके टेस्ट करें। तो एकेडमिया को सोसाइटी से कंटिन्यूअसली इंटरैक्ट करना है। Then we created Opulence the Entrepreneurship Festival 2004 में IITs में मॉडल एग्जीबिशन होते थे, स्पोर्ट्स फेस्टिवल, कल्चरल फेस्टिवल, लेकिन we thought to initiate entrepreneurship in the campus, so we started with the entrepreneurship festival, business plan competition, case studies, इंजीनियरिंग के बच्चों को ये सब सिखाया जाने लगा। फिर कई तरह के वर्कशॉप, इंडस्ट्री एक्सपर्ट, स्टार्टअप्स के साथ वी स्टार्टेड विद टेप आउटरीच सेंटर 2006 में, टेक्नो एंटरप्रेन्योरियल प्रमोशनल प्रोग्राम, तकनीकी उद्यमिता संवर्धन कार्यक्रम, जहां ग्रास रूट इनोवेटर को भी हम लोगों ने सपोर्ट करना शुरू किया। बहुत से ऐसे लोग जो पढ़े नहीं होते, इंस्टीट्यूशन के बाहर होते हैं, अच्छा काम करते हैं, उनका सपोर्ट। देन 2008 में हमने बिजनेस इंक्यूबेशन स्टार्ट किया, दैट इज द मालविया सेंटर फॉर इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। आज 2020 के बाद उसका नाम बदल दिया गया, दैट इज नोन एज I3F, बट थिंग इज गोइंग ऑन। और 2009 में टेक्नोलॉजी कमर्शलाइजेशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी कि जो भी टेक्नोलॉजी हम डेवलप कर रहे हैं वो पेटेंटिंग हो रही है, तो क्या वो कमर्शलाइज हो रही है, या किसी और ने डेवलप किया तो क्या उसकी टेक्नोलॉजी को हम कमर्शलाइज कर पा रहे हैं। सो ऑल दिस और सम ऑफ दिस हैज टू बी इनिशिएटेड इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द नेशन। फिर कैसे MCII जो 2008 में हमने शुरू किया विद द हेल्प ऑफ DST, कैसे इसमें दूसरी एजेंसी जुड़ती चली गई, प्राइवेट कंपनीज भी आई, सिस्को आया, NCL आया। So you see, when you start something, people come together, flock together to make it big. There is dancing then. So we have arranged a number of activities. ऐसे भी स्टूडेंट्स आए, ऐसे भी लोग आए जो नौकरी छोड़ के आ गए, कंप्यूटर के टीचर, ड्राइंग के, फाइन आर्ट्स के टीचर, they came, stayed with us, developed their company and then went beyond. We have discussed some of these in first lecture. एडोलेसेंट एज के बच्चों की भलाई के लिए we even filed affidavit in Supreme Court against the pornography on the smartphone. We won the case, but still we have not done the job. You see what is the problem? How to protect the society, I'm unable to understand. तो करके कुछ सीखने का हो, केवल क्लासरूम टीचिंग के बियॉन्ड जाने को, उसे तरह तरह की चीजों को एक्सपोज करने को, दैट इज नोन एज स्किल ट्रेनिंग. नाउ आई एम वेरी सीनियर, so what I'm experimenting, what I'll do after 6 years when I retire. So what I done, I established 3 ashrams. The Mera Gaon, Mera Tirth at my own village. So very poor and marginalized class students are coming. They are getting remedial teaching, not full-fledged, 2 hours every day. And then their mothers are trained, or their kind of skill training is also required by us, so-called educated people. Second,
ashram we are creating in Mirzapur near Chunar. The intent is to make it an open kind of university for art, culture, and specific knowledge to tribal, preserving tribal culture. And the third, in the city, at the bank of Ganges, again intention is to work for skill upgradation in the literature, art, craft, etc. One more initiative has been associated. Why I'm showing this, somebody can ask, because you are moving on the same path which I already moved somewhat ahead to you. So we started in 2017 this Roti Bank Trust from Varanasi under the leadership of Kishore Tiwari, the student in blue shirt. And today is his birth anniversary. He is no more. He died during the corona while serving others. But still we are carrying forward his legacy. And now we are serving the poor people in 7 states and 27 districts. Nobody fund them. This is the crowdfunding, you can say, donation. And each individual in every district, somebody, Ravi Shankar Upadhyay in Chhapra and similarly in other districts, बच्चे अपने से initiative लेके एक नया काम करते हैं. So you see, there are n number of activities to be done. और ये मशीन मैं इसलिए दिखाता हूँ कि हमारे एक स्टूडेंट ने 91 बैच, he donated this machine investing around 3.5 lakhs. So skill training, social responsibilities, all are having very great values. और आपको एक trained, polished graduate चाहिए, तो आपको उसको exposure देना होगा, अपने को improve करना होगा. I'm sharing my email ID, my WhatsApp number. In case any query, any collaboration, any discussion is needed, I'm open to that. So I suppose good enough discussion has been made. 8:30, we have to start another session. Hello, sir. Sir. Sir, can you hear me? हाँ नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? Yes, 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 boss. Sir, Amit speaking here. Yeah, Amit Chaudhary. Now I can Yes, see sir. you, please. सर आप पीपीटी शेयर कर देंगे सर ये? कर देते हैं ये आपको. सर पीपीटी काफी यूजफुल रहेगा अगर आप शेयर कर दें सर तो. मैं कर दूंगा. I'll send this to the TLC people through mail and they will share with you. ओके सर. सर जो नंबर आपने दिया है सर उस पे कांटेक्ट कर सकते हैं कोई अगर गाइडेंस चाहिए होगा. Yes sir, yes sir. That is WhatsApp number. You please WhatsApp your need and then if required we'll talk. ओके ओके सर. ओके सर. Thank you. So we should stop here then. Should I quit? Somebody from TLC, anybody? So thank you. Namaskar. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.